So in yesterday's class, I think we have covered till here. यहाँ तक हमारा हो गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सभी हो गया था। ठीक है, बीड मॉडल हमने देख लिया था। बीड मॉडल इज इन महाराष्ट्र। बीड मॉडल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका इंश्योरेंस का रह गया था, सो विल कवर इट। बहुत जल्दी से आज कवर करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो सभी लोग क्या करते हैं, इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, लोग people have tendency to write this suggestion in the conclusion only. कोई भी प्रॉब्लम हो इन एग्रीकल्चर, बट दे डू राइट सिंपली वी हैव टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा उनको याद आता है कृषि सिंचाई योजना। थर्ड, सोइल हेल्थ कार्ड। फोर्थ, उनको याद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। बस दीज लेम स्टेटमेंट दे नो in the suggestion only. So these are the only lame statements. You will not get I think a very good marks. दूसरा है इंट्रोडक्शन में, everybody has a tendency to write India is a large country and around 55% of the population is involved in this sector, this and that, 18% of the participation or the contribution is comes from the agriculture into the GDP. बस ये दो स्टेटमेंट लिख के खत्म। ये रटी पड़ी हैं, इन्हीं से आप सोचते हो कि आप स्टार्ट करोगे। नहीं, आई नीड समथिंग मोर, I need something specific. I need important reports. I need FAO report. I need the NABARD report. I need different hunger index reports. These kinds of report you can quote. ठीक है? You can also quote climatic. अगर कोई climate और agriculture को, if any examiner want to relate with that, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने पोज करता है, गिव सम IPCC रिपोर्ट, गिव इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, रीड इकोनॉमिक सर्वे। देयर इज स्पेशल चैप्टर, देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर इन इकोनॉमिक सर्वे अबाउट एग्रीकल्चर एवरी ईयर। ठीक है, इस साल आएगा, इस साल तो अभी आ चुका है, बाकी अब तो फरवरी में आएगा इकोनॉमिक सर्वे और ईयर एंड पे। ठीक है, यस गिरीश, यू आर अबाउट टू से समथिंग। Can you explain PSL? Which one? PSL. Sorry, I could not. Lead bank PSL. Oh, lead bank scheme. Okay. So yesterday we were talking about this PSL. This PSL is simply public sector priority sector lending. Priority sector lending. So yesterday only we have talked about while giving loans, this public banks or the nationalized bank, any bank, suppose they have the money and they have to lend it. Suppose they are giving 100 rupees, but the government have made a rule that out of 100 rupees, 40% or 40 rupees going to the PSL. But in the PSL they are well defined sectors. PSL, priority sector lendings, there are some sectors, there are some areas in which you have to give the loan. What are those areas? Areas like agriculture, where you have to give around 18 rupees out of 100 directly to the agriculture. There are renewable energy areas. Anybody if want to invest in the renewable energy sector, he will directly get the loans from the bank. ठीक है, बैंक से उसको पैसा मिलेगा। I do not know about the exact number, कितना परसेंटेज उनको मिलता है। There are another area of education loan. I think most of you know that comes also under priority sector lending. It means if you are going to the bank and you want a loan, education loan, the bank needs to give unless and until के बैंक का 40% पैसा चला गया उस एरिया में, तो उसके बाद तो बैंक कैन डिनाई दैट वी हैव ऑलरेडी अटेन अवर 40% ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लिमिट। नाउ यू कैन गो टू अनदर बैंक, दूसरे बैंक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। सो दिस एंश्योर्स व्हाट दिस PSL एग्जैक्टली एंश्योर्स। क्या होता है इससे? इट एंश्योर्स इक्विटी इन द सिस्टम, in the society, in the country, because if the money lender or the big houses only they are getting the loan, only they are getting access to the credit system, तो उनका ही business चलेगा। What about the poor farmers? They also need money to run their businesses or to purchase some inputs for the agriculture. ठीक है, inputs like seeds, fertilizers, inputs like fuel, input like machinery, we have talked about earlier. ये सभी चीजों पे हमने बात किया।
So I hope PSL is clear. Another thing is lead bank. I think lead bank के बाद there was also a important concept of mobile ATM. Mobile ATM. One important concept was mobile ATM. Suppose it's a hypothetical situation. During the 1990s, what happened? People do not know how banking services I think actually performs, कैसे functions, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज कैसे काम करती है, nobody knows, स्पेशली द रूरल पीपल. उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था बैंकिंग सर्विसेज का, ठीक है. तो गवर्नमेंट थॉट कि उनको सबसे पहले इफ यू ब्रिंग, अगर आपको किसी को इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फैसिलिटी देनी है, व्हाट यू हैव टू डू, उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए सिस्टम के अंदर. दे नीड टू ब्रिंग इनटू द फॉर्मल सिस्टम, ठीक है. दैट इज द प्राइम कंडीशन, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. दे नीड टू एंटर इनटू द फॉर्मल सिस्टम. फॉर्मल सिस्टम में एंटर करने के लिए दे नीड एन बैंक अकाउंट, ओके. बट क्या होता है, रूरल पीपल जो होते हैं उनका बैंक अकाउंट होता नहीं है. होता भी तो देर आर आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो रूरल एरियाज में बैंक अकाउंट रखते हैं. पहले की बात बता रहा हूँ, अभी चेंज हो गया ऐसे नहीं, सबके पास है अब तो, सब यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं. पहले की बात है. तो ये स्कीम है, पुरानी है, 1990s की. उस टाइम पे सोचा गया था कि लीड बैंक स्कीम से हमें क्या करना होगा, वी नीड टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ विलेजेस. क्या हुआ, हर एक विलेज को तो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे बैंकिंग फैसिलिटीज, बट गवर्नमेंट थॉट के एक एफिशिएंट तरीके से वी कैन प्रोवाइड, वी कैन लोकेट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट विलेजेस, और एक मीन डिस्टेंस पे उनके बीच में वी कैन बिल्ड अ बैंक. तो बैंक यहाँ पे बना देंगे ना. ऑल द विलेजर्स दे कैन कम एंड एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज. बैंकिंग फैसिलिटीज एक्सेस करेंगे तो क्या, यहीं से उसको पीएसएल मिल जाएगा. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर दे आर गेटिंग द क्रेडिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से अगर आपको क्रेडिट मिलेगा, क्या फायदा आपको, पहला फायदा, इन केस देयर इज एन एग्रीकल्चर फेलियर, क्रॉप फेलियर, एनीथिंग, तो योर लोन कैन बी वेव्ड, योर लोन कैन बी वेव्ड, ठीक है, ओनली थ्रू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम. बट सपोज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, फ्रॉम द मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर से लिया तो आप भूल जाइए कि आपका लोन वेव होगा, ठीक है. कुछ भी हो दुनिया में, दुनिया उलट पुलट हो जाए, बट द मनी लेंडर नीड्स इज मनी, ओके. तो उस केसेस उससे क्या होता है, सुसाइड्स होते हैं, ठीक है. सो लीड बैंक आई थिंक आपको पता चल गया होगा, इट इज ऑल अबाउट द बैंकिंग सर्विसेज. नाउ कमिंग टू द दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. आई वाज सेइंग, डू नॉट राइट दिस लेम स्टेटमेंट इन द सॉल्यूशन. सिर्फ आप ये लेम स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा. मैं बस ये चाहता हूं कि आप whenever you are approaching any essay, अगर उस essay के अंदर the theme is different, the topic is different, the demand is different, do not write abruptly these statements like के solution सिर्फ provide प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. सपोज कीजिए प्रॉब्लम इज डिफरेंट एंड यू आर सजेस्टिंग दिस, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज नॉट अ रामबाण, इट इज नॉट अ संजीवनी ओनली, कि आप ये दे देंगे तो एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड. ये एक सिर्फ एक चीज है, मतलब एक बीमा है, इंश्योरेंस है. क्रॉप फेलियर के दौरान आता है, कभी डिस्ट्रेस होगा एग्रीकल्चर में, उसके मिटिगेशन के लिए आता है. लेकिन ये जब आता है जब ऑलरेडी डिस्ट्रेस हो एग्रीकल्चर में, बट वी नीड टू एंश्योर दैट के डिस्ट्रेस आए ही ना. ये तो एक सेफ्टी नेट है, ठीक है, ये तो एक सेफ्टी नेट है, बट हमें तो पहले वाला काम करना है ना. we need to build infrastructure, we need to bring assured irrigation facilities, credit facilities, ठीक है, use of technology, make our products more competitive in the international market. ये चीजें, ये हमें पहले वाला काम करना है. ये तो बिल्कुल, ये बोलते हैं ना, आखिरी जान बचाओ वाला काम है. इसको तो हम बाद में रखेंगे, बट देयर आर सम लिमिटेशन इन दिस सिस्टम आल्सो. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप देखेंगे इसमें खुद ना खुद इसमें लिमिटेशंस है. कौन कौन सी लिमिटेशन, विल सी, ठीक है, चैलेंजेस में देखेंगे. पहले इसको देखते हैं. प्रधानमंत्री 2.0 फसल बीमा योजना के अंदर देयर इज अ कैपिंग कि 25%. सपोज कीजिए कि आई थिंक 2.0 में कैपिंग है 25%, बट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे पहले जो 1.0 था वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन दैट सेंटर की जो कैपिंग थी ओनली 14%. सपोज 30%
premium needs to be paid, 30% इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस नीड्स टू बी पेड टू द फार्मर्स। सपोज कीजिए कि 100 फार्मर थे, ठीक है, 100 फार्मर थे, उसमें से 30 की फसल खराब होगी, समझ गए, 30 की फसल खराब होगी, और 30% मतलब लॉस हो गया टोटली। 30% लॉस होने के बाद सेंटर इज सेइंग वी विल गिव ओनली 14% ऑफ इट, 14% हम देंगे। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद ये बोलता है कि स्टेट्स आल्सो नीड टू गिव द 14% जो बचा हुआ है, बाकी का 2% कौन देगा, फार्मर। ठीक है, वो फार्मर से कब लेते हैं, एट द इनिशियल स्टेज पे, जब वो क्या करता है, जब इस इंश्योरेंस को वो लेता है। ठीक है, जब भी इंश्योरेंस लेता है तो फार्मर्स नीड्स टू पे अ प्रीमियम ऑफ 1.5% फॉर द रबी एंड 2% फॉर द खरीफ। इस प्रीमियम का मतलब है, अगर आपका बीमा हो रहा है 1 लाख का, तो आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपका यहाँ पे खरीफ क्रॉप के लिए आपको 2000 देने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द 2%। ये समझ में आया आपको? तो दिस इज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रीमियम वाला चक्कर है, इसमें ये बोला कि अननेसेसरी सेंटर विल ऑलवेज टेक द बर्डन ऑफ दिस प्रधानमंत्री दिस फसल बीमा योजना। स्टेट गवर्नमेंट आल्सो टेक अ रोल इन दिस। तो PM 1.0 में 14% कैप थी, बट दे हैव रिवाइज्ड इट, नाउ द सेंटर विल कंट्रीब्यूट अराउंड 25%। ओके, now this no more mandatory for indebted farmers. The farmers who are already indebted, who are not able to purchase this insurance scheme, so they are not required to pay the 2% premium only. यहाँ पे भी उसको relaxation दिया गया है। Next is more freedom to states to add risk coverage. Suppose कीजिए बीमा हो गया है, ठीक है, इंश्योरेंस इज ऑलरेडी डन, बट सिचुएशन हैज अराइज्ड, ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है, उस सिचुएशन के अंदर जैसे सपोज कीजिए कुछ मॉनसून फेलियर होने वाला है, टेम्परेचर हैज इंक्रीज, जिससे आपको पता लग रहा है प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई, तो इन बिटवीन, उस सीजन के बिटवीन में ही यू कैन ऐड दैट रिस्क। इतना लेवरेज किसको दे दिया है, स्टेट्स को। ठीक है, टू ऐड रिस्क कवरेज इन एग्जांपल मिड सीजन एडवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ होता है, सपोज देयर इज एन हेल स्टॉर्म, ठीक है, you can add that in the mid season only. Suppose next is state that do not release arrear on time would not participate next year. I think ये तो सबको पता है arrear क्या होते हैं। अगर states ने जल्दी से yesterday only I think we have talked about, अगर timely compensation farmers को नहीं मिल रहा है, if farmers are not getting timely compensation, next time states, the center would not allow states to participate in this particular schemes. Okay, next is what are the challenges like windfall profit to insurance firms. What is windfall profits? Windfall profits means unexpected gain in income. Suppose बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फार्मर्स ने, they took the insurance but there is no distress in that particular year, total profit हो गया organizations का। ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, so sometimes they have the unexpected gain and the government is trying to take some portion or some cuts from this gain of the gain in the income। इस इनकम में से थोड़ा कट्स चाहता है वो सेंटर। ठीक है, कि डायरेक्टली आप पूरा का पूरा गेन ना लें, इन केस देयर इज अ वेरी गुड सीजन फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट इज डिलेड पेमेंट, नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चैलेंजेस बता रहे हैं, वहां पे क्या क्या यूज कर सकते हैं चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर्स कंट्रीब्यूशन कैप्ड, अब स्टेट्स के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस नो लॉन्गर मैंडेटरी। ठीक है, रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म के अंदर आपको पता है भाई भतीजावाद और ये करप्शन है, वो तो नेपोटिज्म होता है, पर देयर इज सम करप्शन। ओके, करप्शन लाइक डिलेज इन सिलेक्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज, मेकिंग प्रीमियम पेमेंट, क्रॉप डेटा नॉट ऑन पोर्टल ऑन टाइम, ये सभी चीजें हैं, ये करप्शन का ये दिखाता है करप्शन। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बोलते हैं इसको। ठीक है, देयर इज अ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ये डेलिब्रेट होता है, नो डेलिब्रेट, दीज आर द डेलिब्रेट एक्शंस। क्यों डेलिब्रेट एक्शंस? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन दिस इंश्योरेंस स्कीम्स, कंपनसेशन पे इतना पैसा देगी क्यों? ऑलरेडी इफ यू हैव सीन, अभी क्लास शुरू होने से पहले आप शेयर्ड न्यूज के उसमें फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडी है उसमें देखा होगा, देयर वाज वन पर्टिकुलर थिंग इज रिटन 2.5 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी इस ईयर की। अभी तक हम दे चुके हैं 2 लाख 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी।
अरे किसी कंट्री का इतना बजट भी नहीं होता, टोटल बजट भी नहीं होता 2.5 लाख करोड़ का। पाकिस्तान का देखो मेरे ख्याल से इतना बजट भी नहीं है 2.5-3 लाख करोड़ का। ठीक है, इतना हम सब्सिडीज पे स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ऊपर से बोल रहे वी नीड टू गिव सम कंपनसेशन आल्सो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर फेलियर। क्या करता है वो, द गवर्नमेंट डेलिबरेटली डू दिस डिले इन सेलेक्टिंग इंश्योरेंस कंपनी। वो सोचता है कि कैसे ना कि एक बार जैसे सर्वे होता है बिफोर यू ग्रो एनी पर्टिकुलर क्रॉप, या फिर उगाने के बाद भी द सर्वेयर नीड्स टू कम एंड विजिट द पर्टिकुलर फार्म लैंड, फार्म उसको विजिट करना पड़ेगा सर्वेयर को। बट ये सभी चीजें इसमें दिस आर टाइम टेकिंग, तो डेलिबरेटली द गवर्नमेंट ट्राई टू डिले दिस प्रोसेस। जब तक वो सर्वे नहीं होगा आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर। सो दे दीज आर द सम आई थिंक challenges in this particular system. Next is it doesn't cover wild animal attacks। केरला के अंदर हाथी घुस जाता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीजें इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर नहीं है। अनदर थिंग जो इसमें नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, इन केस देयर इज एनी वॉर, अगर वॉर हो जाए, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वॉर हो जाएगा तो देयर विल बी सम डिस्टोर्शन, कुछ ना कुछ होगा। सपोज कीजिए दूसरा, अगर कोई राइट्स लाइक सिचुएशन हो जाए और कोई डेलिबरेटली, इफ एनीबॉडी डेलिबरेटली पुट योर फार्म्स ऑन फायर, ठीक है, दैट विल नॉट बी कवर अंडर दिस। सपोज कीजिए आपने पूरा वीट को हार्वेस्ट कर लिया है एंड यू हैव कलेक्टेड होल द वीट इन वन पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद सपोज कीजिए कोई ना कोई मिसहैप हो जाती है, इन केस इन देयर इज एनी फायर, that thing also will not be covered under this Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So these are the challenges. Next is center halved contribution to 25% of it. छोड़ो उसको, हो गया repetition. What is the way forward? Way forward with respect to the insurance. Now this government is trying to push this micro insurance products like timely payment होना चाहिए, use of technology. Use of technology का मतलब है reduce these bureaucratic delays. जो bureaucratic delays हो रहे हैं जानबूझकर सिस्टम में लोगों को उलझाए रखते हैं, ठीक है, उन जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको कम करना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ द इंश्योरेंस पेमेंट बेस्ड ऑन रेवेन्यूज नॉट प्रोडक्शन। अच्छा, ये एक सजेशन है, दिस इज ओनली ए सजेशन। इंश्योरेंस पेमेंट बेस्ड ऑन रेवेन्यूज नॉट ऑन प्रोडक्शन। नाउ currently the system is only providing the insurance based on the production, ठीक है। if there is a cut in the production due to monsoon failure हो गया, प्रोडक्शन कम होगी, so that will be incentivized और उसको compensation मिलेगा फार्मर्स को। सपोज in the market price is dropped, उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस का प्राइस ड्रॉप हो गया, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। सो टॉक्स आर गोइंग ऑन टू कवर इंश्योरेंस पेमेंट फॉर द रिवेन्यू ऑल्सो, जो भी जनरेट होगा उसमें उसका बेटर प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मार्केट में प्राइस एश्योरेंस है या नहीं, ठीक है। नाउ द बीड मॉडल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। फार्म सपोर्ट, अब फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर इज एनी क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, उस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए व्हाट डू वी हैव। लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द लोन वेवर्स। अच्छा, loan waivers allowed by the multiple states, announced by the multiple states. We have seen the history, we have seen the timeline, when Andhra Pradesh did, when this Telangana did, then UP did, ठीक है, तो we have seen the timeline. Now these are the effects of loan waiver. क्या क्या effect है? Poor credit discipline, we have seen. What is poor credit discipline? हमने I think if anybody is not understanding, please tell me. So we have the new member with us, सौरभ राव। आपको ये समझ में आ रहा है? सो आई हैव आल्सो शेयर्ड विद सम लिंक प्रीवियस क्लासेस का, आ रहा है ना? तो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी और आस्क एनीथिंग, कहीं पे भी जो भी समझना है ना बिल्कुल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी आर नॉट इन अ हरी टू कंप्लीट द सिलेबस, वी हैव टाइम, एनफ टाइम है, बिल्कुल आराम से करेंगे। जहां पे भी आपको ये लगता है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आस्क क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है, आपको ये लगता है आई हैव दिस रेलिवेंट पॉइंट बट आई वांट टू कंफर्म कि ये रेलिवेंट है या फिर इसको यूज कर सकते हैं नहीं, प्लीज आस्क, ठीक है। ओके, नाउ द पुअर क्रेडिट डिसिप्लिन सिस्टम, नेक्स्ट इज डू नॉट बेनिफिट इनफॉर्मल बोरोवर्स। हाँ, एक तो पुअर क्रेडिट डिसिप्लिन सिस्टम का मतलब है जो फार्मर्स ने
लोन लिया था। एंड द फार्मर्स, not all farmers are incapable of giving back the loans. There are some farmers जो कि सपोज कीजिए इसमें से इतने ही फार्मर्स होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल, बट इट सेंड्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। इनको भी ये लगता है जो कैपेबल फार्मर्स हैं, अगर सरकार माफी कर रही है, इफ गवर्नमेंट इज गिविंग अस रिलीफ, व्हाई डोंट वी आल्सो टेक दिस रिलीफ? ठीक है, दे आल्सो फील रिलक्टेंट टू पे द लोन बैक। ठीक है, सो पुअर क्रेडिट डिसिप्लिन सिस्टम, and it does not, or it do not benefit informal borrowers like the farmers who have taken loan from the unorganized sectors। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप लोन लेंगे तो आप फार्म लोन वेवर तो होगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंडर आपको देना पड़ेगा, बैंक से लेना पड़ेगा। अब आप मनी लेंडर से लेंगे तो कौन आपका पैसे वापस, ठीक है, लेने से रोकेगा? नेक्स्ट इज मेक बैंक्स अनविलिंग टू लैंड इन फ्यूचर। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। ठीक है, बैंक्स विल फील रिलक्टेंट टू गिव फार्मर्स नेक्स्ट टाइम, अगर उनको लोन वेवर कर दिया बैंक्स ने। ठीक है, बैंक्स के पास पैसा आएगा, बैंक्स अपनी जेब से नहीं देगा, गवर्नमेंट विल गिव द ड्यू अमाउंट टू द बैंक्स, but after a short period of time. That time can be 3 months, that time can be 4 months, that time can be 6 months, a year also। ठीक है, इतने 6 महीने तक, 1 साल तक आपका पैसा फंस जाएगा। इस दौरान इतने पैसे में तो आपको पता है कि बैंक्स करता है क्या है, बैंक्स तो ओनली डू द बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, बोरोइंग एंड लेंडिंग करता है। अगर आपका पैसा कहीं पे फंस गया तो हाउ द बैंक्स विल लैंड? उनका बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। तो यही है, so the banks will become unwilling to lend in the future and affect states fiscal space। आपको पता है कि बजट के अंदर you will not be able to spend upon the this infrastructure और development activities के लिए आपके पास स्पेस नहीं है। your budget is so tight and constrained। जैसे आपके पास 5,000 रुपए हैं, 5,000 में से आपको कोचिंग भी लेनी है, 5,000 में से आपको you need to travel also, you need to sustain for a 1 week also। ठीक है, तो ये बजट का पूरा आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म बैंडेड। सो ये एक मायोपिक स्टेप है, उसके लिए सिर्फ आप एक बार कर सकते हैं। लोन वेवर इज नॉट बैड थिंग अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है कौन इंडिया के अंदर ऐसे, ठीक है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पीएम किसान, ये भी फार्म सपोर्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज फार्म सपोर्ट, व्हाट इज इंश्योरेंस, एंड व्हाट इज दिस आई थिंक क्या क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज, व्हाट इज सीड्स, व्हाट इज इरिगेशन। सेपरेटली स्टडी करो हर एक चीज को। अब आप इतना लंबा चौड़ा जब पढ़ोगे ना इन चीजों को, फिर आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए, यू हैव द नॉलेज, यू हैव सीन द टॉपिक होलिस्टिकली। उसके बाद जब आपके पास होलिस्टिक नॉलेज होती है ना, you will be able to understand the current affairs। that's why I'm focusing on the basics पढ़ोगे, you will link the current affairs with the basic, your preparation will also solidify। ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन बनेगी, बेस अच्छा बनेगा, your thinking will increase, your high order thinking will develop, you can face any question in the interview। ठीक है, they want to check your multidimensionality, ये भी चीजें आपको फायदा करेंगी। तो इस तरह से हमारे पास टाइम है, we have the time and we will do it in this way। people will come to you कि ये इतना क्यों पढ़ रहे हो यार, सीएपीएफ में नहीं आता। yes, they are right also। ठीक है, to some extent they are right also। you will not be able to use, I think, most of this information in your CAPF paper 2। ठीक है, but to make you feel confident, that you know the things, you understand the things, you have the basic knowledge and you can attempt any question। सिर्फ इस डर को भगाने के लिए मैं कि you can attempt any question on the agriculture sector, on the internal security sector। that's why we are making our preparation more comprehensive। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको 2-4 स्लाइड में भी कर सकता था खत्म, नाउ उसके बाद ये आपको ही करना पड़ता। ठीक है, आई एम ओनली ब्रिजिंग दोस लूप होल्स जहां से भी शायद यूपीएससी पूछ सकता है, शायद। फार्म सपोर्ट का हमने देख लिया कि ये पूछा है, डायरेक्टली लोन वेवर से पूछा। लोन वेवर इज अ स्पेसिफिक थिंग। उस टाइम पे क्या था, लोन वेवर वाज इन न्यूज, यूपीएससी डिड आस्क। ठीक है, यू नेवर नो इन द कमिंग नेक्स्ट 6 to 7th month और 8th month क्या करंट अफेयर होने वाला रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, यू नेवर नो। इसलिए इट इज द टाइम वी नीड टू मेक अवर बेसिक्स मोर स्ट्रॉन्ग। बेसिक्स पे फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स पे हम नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे हम
टाइमली करेंगे जब करंट अफेयर्स डेवलप होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नाउ द इंटरनल सिक्योरिटी इज कंप्लीटेड, स्टार्ट लुकिंग फॉर द करंट अफेयर्स फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी. जहीं से जहां पे भी आपको मिले करंट अफेयर दिख गया इंटरनल सिक्योरिटी का, आई हैव सम मटेरियल, मैंने कुछ बेसिक्स किया है, कनेक्ट विद दोज बेसिक्स. ठीक है, ये पीडीएफ सिर्फ 20 पेजेस का है और 20 पेजेस में भी ओनली दिस रेलिवेंट पॉइंट्स, नो नथिंग इररिलेवेंट, सिर्फ इट इज द मोस्ट अपडेटेड. ठीक है, 2021 तक और 22 तक का पूरा इसमें डेटा है, कोई भी स्कीम आप देख लेंगे, मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट अपडेटेड. अच्छा, अब पीएम किसान के अंदर आ जाओ, फार्म सपोर्ट हो गया हमारा. फार्म सपोर्ट के अंदर पीएम किसान है, वी हैव टॉक्ड अबाउट के 6,000 रुपए सालाना यू आर गिविंग टू द ऑल लैंडेड फार्मर्स. ऑल लैंडेड नहीं है, आई थिंक देयर इज सम सीलिंग कि उसको 2 हेक्टेयर या फिर 1 हेक्टेयर से उसकी जमीन कम होनी चाहिए. द फार्मर नीड टू हैव अ लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग है 1 या 2 हेक्टेयर से उसमें कम होनी चाहिए उसकी जमीन, तो ऑल लैंडेड नहीं होगा इसमें. अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल, आई विल चेक एंड आई विल अगेन टेल. मुझे जब ये पॉलिसी रिलीज हुई थी ना, सो इट वाज टू ऑल लैंडेड फार्मर्स. अगर आप 6,000 रुपए सपोज ये मुझे उस टाइम से ही तंग कर रही है, जब मैंने बहुत पहले ये पीएम किसान 2019 में आई थी, 18-19 में, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट इज फॉर ऑल लैंडेड फार्मर्स, जिसके पास जितनी भी जमीन है उसको ये है. ठीक है, ऐसा सपोज कीजिए सम बिग फार्मर्स इज देयर, अगर कोई बड़े फार्मर है उसको 6,000 रुपए क्या जरूरत है देने की. सो ये तो कोई एफिशिएंसी नहीं हुई, ये तो इसके पीछे कोई रैशनल भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है. ठीक है, जो नीडी फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन कम है, उनको तो आप देंगे तो मानेंगे भी ना. तो ये ठीक है, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, बट अगर इसको हम रीजनेबली देखें तो इट शुड बी फॉर द स्मॉल लैंडेड फार्मर्स. यस शांतनु. सर ये सरकार में इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, उसके बाद भी ऐसे मतलब ऐसी दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? ये लूप होल कहाँ से होते हैं कि उन्हें तो हर चीज का पता होता है, या तो वो ग्रास रूट लेवल पे चीजों को वो नहीं करते कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, ऑफिस में बैठ के हाँ फैसला ले लिया, बात खत्म. टू सम एक्सटेंट अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग. अकाउंटेबिलिटी है, जैसे आई एम अकाउंटेबल टू यू, राइट. मुझे कोर्स खत्म करना है और आई नीड टू बी, ये होता है ना कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब मेरी रोजी रोटी भी है एक तरह से, हम देखते हैं इस चीजों को, और मुझे परफॉर्म भी करना है, आउट परफॉर्म करना है, आई नीड टू शो सम सिलेक्शंस आल्सो, सो देयर इज सम अकाउंटेबिलिटी एंड आई लाइक दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. एक तो ये हो गया, बट अभी आप देखेंगे उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है. उनको पता है दे विल गेट द टाइमली प्रमोशन. ठीक है, अगर हम वर्क हार्ड नहीं करेंगे, सपोज आप अपना ही केस ले लो, अगर आप कॉम्पिटिटिव फील नहीं रखोगे, अगर आप मतलब दूसरों को पीछे नहीं मतलब पछाड़ो नहीं गए, तो आप व्हेन यू विल गेट द सिलेक्शन कैसे लोगे? तो आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विसेज ये वाला एटीट्यूड आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरे खाते में हर महीने पैसे आने वाला है, ठीक है, और मुझे क्यों करना है इतना भाग दौड़. बट देयर आर सम डेडिकेटेड ऑफिसर्स आल्सो, बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेजेस में दे डू वर्क. बट इस चीज को ठीक करने के लिए जो शांतनु आपने पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. 360 डिग्री अप्रेजल, 360 डिग्री अप्रेजल गवर्नमेंट लेके आई है 2 साल पहले जानबूझकर, टू चेक ऑल दोज ऑफिसर्स हु आर परफॉर्मिंग इन सर्टेन पैरामीटर्स. क्या वो मतलब इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, ये सभी चीजें उनके इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी, इन टर्म्स ऑफ उनका एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम, ये सभी चीजें, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है नहीं, टेक सेवी है या नहीं, ये सभी चीज 360 डिग्री अप्रेजल. मुझे पैरामीटर्स नहीं पता, पैरामीटर्स कैन बी मोर, मुझे अभी तक इतना आइडिया कि 360 अप्रेजल एक पर्टिकुलर ये है मैकेनिज्म टू ट्रैक डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द दिस ब्यूरोक्रेट्स. उसके साथ ही आपने देखा होगा देयर इज आई थिंक फोर्सफुल रिटायरमेंट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश डीजीपी 3 महीने पहले, ठीक है, 3 या 4 महीने पहले, दिस वाज द केस, दिस वाज न्यूज़, है ना. फोर्सफुल रिटायरमेंट, क्यों? काम नहीं कर रहा था. एक आईपीएस ऑफिसर और था यूपी पुलिस के अंदर, ये तो डीजीपी की बात कर रहा हूं मैं, डीजीपी हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल. अच्छा, आईपीएस ऑफिसर था, उसको भी आई थिंक फोर्सफुल रिटायरमेंट दी.
ये चीज सब चीजें चली हुई हैं, सो दिस थिंग्स आर देयर। तो अकाउंटेबिलिटी का ही चक्कर है जहां तक मुझे लग रहा है। उसके बाद इंसेंटिव्स नहीं है उनको, टाइमली उनको प्रमोशन मिल रहा है, और एक टाइम के बाद लेथार्जी। और इसीलिए देखो शांतनु, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विसेज दिस आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर्स, ये मिड टर्म ट्रेनिंग होती है इनकी दोबारा से। दे नीड टू अटेंड दोस ट्रेनिंग। लबासना में ये दोबारा जाते हैं, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर आपका सरदार भाई वल्लभ नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर दोबारा जाता है 3 साल के बाद, या फिर मिड टर्म 15 साल के बाद, 10 साल के बाद। दे नीड टू अटेंड द टाइमली कोर्सेज, ठीक है। उनकी फॉरेन विजिट होती है, ये सभी चीजें तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए, मतलब वो भूल ना जाए कि यहाँ पे आए क्यों हैं और उन्हें काम क्या करना है, ठीक है। पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग, सपोज कीजिए कांस्टेबल है या फिर सब इंस्पेक्टर है, उनकी टाइमली ट्रेनिंग नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे बिकम इनसेंसिटिव, ठीक है। टाइमली एक बार उनकी ड्यूरिंग बिफोर द इंडक्शन दे डू द कोर्स, 18 महीने का कोर्स करा दिया, पूरी उनकी लाइफ में अनलेस एंड अनटिल दे हैव अ वेरी गुड ऑफिसर्स ओवर अबव देम, कोई अच्छा ऑफिसर आ गया, उन्होंने उसको बोला कि हाँ उनको मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है ड्यू है, ये कराओ, अदरवाइज उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं कराता, ठीक है। ओके, सो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। तो ये पता होना चाहिए, वी नीड टू रिलेट थिंग्स। नाउ दिस चैलेंजेस ऑफ पीएम किसान हो गया, लैंडलेस वाली बात हमने कर ली। अब पीएम किसान ओनली गिवन टू द लैंडेड फार्मर्स। अब 40% रूरल फैमिली हमारे देश के अंदर क्या है, दिस इज द प्रेजेंट रियलिटी, 40% फैमिलीज दे डू नॉट एक्सेस टू द लैंड, उनको लैंड नहीं है, लैंड है तो डिस्प्यूटेड है। अच्छा, नेक्स्ट इज ओनली द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स फार्मिंग लाइक कल्टीवेशन ऑफ वीट्स, राइस, इसी को इसके अंडर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। बट देयर आर अदर एक्टिविटीज आल्सो लाइक फिशिंग, लाइक एपीकल्चर, कोई मछली पालन कर रहा है, ठीक है, उसको भी तो 6,000 रुपया दीजिए ना, नहीं दे रहे, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बट इसके अंदर एक स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है, ओडिशा, कालिया स्कीम लेके आई है वो। ऑन द सेम लाइन रायतू बंधु, तेलंगाना, these are the two important schemes directly asked in the prelims exam of civil services। इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ये, ठीक है। अगर आप इसको एज एन केस स्टडी आप लिखते हैं अपने एसे के अंदर, इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। कालिया स्कीम, रायतू बंधु स्कीम, ये किसान स्कीम से एडवांस है। इसका आकर एरिया देखेंगे आप, दे आर मच वाइडर एरिया। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, 6,000 तो बहुत स्मॉलर अमाउंट है फॉर अ फैमिली, ये भी है। आधार सीडिंग नॉट यूनिवर्सल, रॉन्ग सीडिंग, आधार सीडिंग, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर है कि नॉट एवरीबडी इज इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम्स। नेक्स्ट इज एरर इन फार्मर डेटाबेस, 20 lakh wrong beneficiary, so there is some leakages. Next is beneficiary to be identified by the states. This particular power of the identification of the beneficiaries is given directly to the states. Center has no control in the identification of the beneficiaries. ये power हमने किसको दी है, states को। Now sometimes states due to political reason they delay the identification or they delay the implementation. कौन सी स्टेट ऐसी थी मुझे बताइए जिसने आई थिंक दे स्टॉप द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान। देयर वर 2 states व्हेन द पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, गेस एनी? सर वेस्ट बंगाल। एक्सीलेंट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाज रिलक्टेंट बिकॉज इट ड्यूरिंग उसमें इलेक्शन आने वाला था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो डिलेज बहुत देर, बहुत सारे पंगे हैं यार। मतलब उन्होंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये सभी चीजें देगी, ये 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए इट्स लाइक अ फ्री बीज, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा ड्यूरिंग दैट इलेक्शन। सो आइडेंटिफिकेशन उन्होंने डिले कर दी, सेवरल स्टेट आउटसाइड एम्बिट। ओके, नेक्स्ट इज, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज हैव ग्रोन एज अ पॉपुलिस्ट मेजर्स। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, farm loan waiver is populistic and myopic, ठीक है। so look for these keywords, so there is nothing irrelevant। जब तक क्वेश्चन नहीं आ जाता ना, तो हम ये सोचते हैं यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें यही लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इस डॉक्यूमेंट का तो मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के अंदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और जो भी आपको मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आई एम डूइंग फिल्ट्रेशन फॉर यू, बहुत सारी मतलब फिल्ट्रेशन करके
आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट आई थिंक 8 to 9 years. I know, और आई एम फॉलोइंग यूपीएससी सिंस लास्ट 6 years. तो आई नो कि यूपीएससी क्या पूछता है, बेसिक थीम्स. एटलीस्ट मैं इतनी हेल्प तो आपकी कर सकता हूँ. इतनी हेल्प जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ न्यूज ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट इज नॉट ओनली आई थिंक सफिशिएंट और नॉट ओनली नेसेसरी. ठीक है, वो इतना है कि सफिशिएंट और नेसेसरी दोनों वाली क्लोज को वो फुलफिल करता है. इसको लेके यू विल गेट मोर देन एवरेज मार्क्स. 100 मार्क्स भी यू कैन स्कोर. ठीक है, इन सभी चीजों को सिर्फ पढ़ के और उसको अप्लाई करके. कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट आई विल नॉट डिनाई कि और कुछ मत पढ़ो. जितना आप अपने आप खुद तैरोगे ना चीजों में, द मोर यू विल सर्च बाय योर सेल्फ. आपका एक एटीट्यूड डेवलप होगा थिंग्स, मतलब चीजों को लेके, और वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहती है वो चीजें. Okay, Shantu. Issues between center, state, government need to collaborate with integrated approach. That's why we need, and that's why this competitive federalism words is given. It is on paper only, competitive federalism. ठीक है, लेकिन in the recent time, I think competitive federalism is on backstage, is on back burner, or things are like more conflicting federalism. Things are like conflicting federalism. जो अभी आप स्टेट्स देखेंगे, there are certain states जो कि मेन जो पॉलिटिक्स है सेंटर्स के अंदर, they have the different ideology, उनके साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है. One important term is given, that is competitive populism. Competitive populism जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर recently I think said that the रेवड़ी culture, right? रेवड़ी culture, freebies. If one state has announced a freebies, दूसरी स्टेट अपने वोटर अपीजमेंट के लिए they are also announcing a freebies on electricity, freebies on transport, freebies on this, freebies on that. ठीक है, so they, rather than having a competitive federalism, now states are moving towards competitive populism. ठीक है, बस वोट बैंक अपीजमेंट. Now the electricity, this is also an important input or backward linkages for the farmers or this agriculture. तो बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? सीड्स, लेट्स रिवाइज. सीड्स, इरिगेशन, इंश्योरेंस मींस क्रेडिट, उसके बाद इंश्योरेंस, नाउ द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये सभी चीजें. ओके, पंजाब पावर क्राइसिस का अभी मुद्दा किस किस को पता है? पंजाब पावर क्राइसिस, थोड़ा सा पंजाब पावर क्राइसिस 3 या 6 महीने पहले की न्यूज है. 3 या मतलब हाँ 6 महीने पहले की न्यूज है. न्यूज थी, पंजाब डू नॉट हैव द मनी. पंजाब के पास पैसा नहीं था, मतलब उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं था देने के लिए टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यस्टरडेज न्यूज वाज देयर, पंजाब इज डिलेइंग पेमेंट और सैलरी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर द आई थिंक 8 to 9 days. 8 से 9 दिन तक उसने गवर्नमेंट सैलरी नहीं दी है. ठीक है, सो अब देखते हैं पंजाब क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट इज गिवन. नेक्स्ट इज दिल्ली वाटर शॉर्टेज, ये भी गिवन है. दिल्ली के अंदर वाटर शॉर्टेज रहती है, एक इंपॉर्टेंट इशू बना था व्हाइल आई थिंक पीपल वर फाइटिंग फॉर द राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर. राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर इन द दिल्ली देयर वाज सम लोकसभा इलेक्शन, बाय पोल्स वाज देयर. ठीक है ना, बाय पोल्स. लोकसभा का था या दिल्ली का ही था, शायद वो दिल्ली का ही था, दिल्ली असेंबली का इलेक्शन था. ठीक है, तो दिल्ली असेंबली के अंदर एक बाय पोल हुआ था एंड आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो वहां पे आया, दिल्ली वाटर शॉर्टेजेस का. वहां पे लोगों के पास जो टाइमली सप्लाई नहीं आती है. नेक्स्ट इज गोइंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी, 0.65% ऑफ द जीडीपी वी स्पेंड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी. नेक्स्ट इज इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको कम करने के लिए आई थिंक कुसुम स्कीम का हमने यूज किया है कि दोज फार्मिंग और दोज एरियाज, दोज फार्मलैंड्स विच आर आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जहां पे डायरेक्टली बिजली की तारें नहीं पहुंच सकी हैं, वहां पे इलेक्ट्रीफाइड डीजल लगाना मुश्किल है. या तो आप डीजल पे स्विच करोगे, और डीजल का आपका रेट पता है कि 90-100 रुपए हो चुका है. ठीक है, तो क्या इनपुट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो डीजल पंप अगर किसान को यूज करना पड़ गया तो इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज. ठीक है, उसके बाद देखें अनकैप्ड सप्लाई सब्सिडीज टू वेस्टेजेस.
कुसुम स्कीम, व्हाट इज DDU-JGY? ग्रामीण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, हाँ, ज्योति योजना। इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, आपको एक्सेस देना। सो इट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 तो है, बट देयर इज अ रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2022। किसने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022? आई नीड यू टू स्टडी दिस बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर। व्हाई दिस पर्टिकुलर बिल is protested by most of the states, be it Punjab, be it West Bengal, be it, I think it was also protested in some southern states. Southern states, be it Andhra Pradesh, be it Tamil Nadu, they are giving so much subsidies on the electricity around these states: Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and one is UP. If you combine all these states freebies, इनकी freebies अगर आप combine कर लेंगे ना, तो it is more than 65%। देश के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी freebies दे रहे हैं, तो ये सिर्फ 4 स्टेट ऐसी हैं जो 65% जो कंट्रीब्यूशन करती है freebies को in terms of electricity। ये सिर्फ 4 स्टेट्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2022 के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, that's why these states are protesting this particular law, ठीक है। I need to know this, this is the homework. Okay, now coming to the fertilizers, electricity we have covered. Another input is fertilizers, which comes under this backward linkages. Fertilizers ka 0.5% of GDP we are spending. I think today only I have shared a news, 2.5 lakh crore rupees we are spending on subsidies. क्यों? देखो पहले इतना नहीं करते, 2.5 लाख। due to international situation, due to रशिया यूक्रेन वॉर, फर्टिलाइजर्स क्या हो गए, उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। अवेलेबिलिटी कम तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई ये जो फिगर है ना, ये फिगर रहती थी आपकी 1 लाख करोड़ तक, 1 लाख करोड़ तक रहती थी ये, पर ये फिगर 2.5 लाख करोड़ तक चली गया, क्योंकि डबल से भी ज्यादा आपके फर्टिलाइजर्स कॉस्ट हो चुके हैं। दूसरा देखते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनपुट के अंदर फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा मतलब इसका मेजर रोल रहता है। अगर आपकी प्रोडक्शन कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक होगी, नहीं होगी, फर्टिलाइजर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद आता है आपका वाटर। बाकी सब ये चीजें मैनेजेबल है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीजें डीजल इंजन लगा के लोग काम चला लेते हैं, नहरों में सुंडवा डाल के काम चला लेते हैं। बट अगर फर्टिलाइजर्स और पानी नहीं है, तो सपोज कीजिए बहुत ग्रेव सिचुएशन है, बट इन दैट इवेंट the fertilizer shortage was there in the international market, Indian government at that time procured fertilizers from the रशिया से हमने लिया, ठीक है, रशिया से हमने लिया। जब भी फर्टिलाइजर टाइमली अवेलेबिलिटी हुई, बट दिस शोज डिप्लोमेटिक पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जब भी हमने डिप्लोमेटिक पावर दिखा के और हमने हमारे पर जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा था बहुत बड़ा यूरोप की तरफ से, दैट वी आर फंडिंग वॉर फलाना ढिमकाना, तो उस क्वेश्चन मार्क को भी, उन सभी चीजों को हमने पीछे छोड़ के व्हाट वी प्रोक्योर्ड इज फर्टिलाइजर्स। यस शांतनु। ये फर्टिलाइजर के ऊपर पिछले साल सर मैंने एक वो भी पढ़ा था आर्टिकल, जिसमें बताया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं इसके रेट। हाँ, 3 टाइम बढ़ जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट के ऊपर वही बात है कि वो तो सब्सिडीज दे के कर देती है, पर वही बात है, लोड तो पड़ता ही है गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसका वैसे भी यूसेज कम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ देखो, इट्स अ थिंक एक ऐसी चीज है, यू कैनॉट नेग्लेक्ट इट। आप फर्टिलाइजर्स के रेट कितने ही बढ़ जाए, यू नीड टू गिव अ सब्सिडी, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो फर्टिलाइजर्स का अगर आप देखेंगे ना प्रोडक्शन या फिर जनरेशन, कुछ नहीं, थोड़ा सा ही जनरेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरिया, आई थिंक 60% ऑफ द यूरिया कंजम्पशन और 60% जो अवेलेबिलिटी है, हम कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेड। 60% देश की यूरिया की जो नीड है, 60% इज इम्पोर्टेड, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं हम। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब कितना ही महंगा हो जाए, अब ये तो नहीं, सरकार कैन नॉट गिव अ रीजन के अब यूरिया महंगा हो चुका है, वी कैन नॉट गिव यू, सर्च सम अल्टरनेटिव।
1 महीने के अंदर व्हाट फार्मर विल सी द अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव लेके आ जाएगा? ही कैन नॉट स्विच ओवरनाइट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक रात में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं स्विच कर लेगा। सो ही नीड टू स्टिक टू द कन्वेंशनल फार्मिंग जो करता आ रहा है, एकदम से नहीं होगा, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे गवर्नमेंट इज डूइंग। देयर इज नीड बेस्ड सब्सिडीज गिविंग, नीड बेस्ड सब्सिडी विल टॉक अबाउट क्या होती नीड बेस्ड सब्सिडी। अच्छा, तो वेरी आई थिंक गुड पॉइंट। नेक्स्ट इज चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स के साथ क्या क्या चैलेंजेस है। पहला, केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉमन हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से नॉर्थ इंडिया। सो वी डिड टॉक अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन है, व्हाई डिड इट हैपेंड ओनली इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन नीड्स फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर्स नीड वाटर, ठीक है, तो इसलिए कनेक्ट करेंगे। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बहुत अच्छा चला ये काम। उसके बाद चैलेंजेस, देयर आर रीजनल डिस्पैरिटी, regional disparity in terms of consumption. Most of the fertilizers is consumed in Punjab and Haryana. This is the average 200 kg per hectare, but if you see the northeast, it is less than 5 kg per hectare. If we see South India, it may be around 100 or 80 or 70 kg per hectare. It may be more in certain areas, but in Punjab and Haryana यहाँ पे सबसे ज्यादा। What it leads to, it will leads to cancers। देखो यहाँ पे overuse in northwest India, it will increase to salinity and alkalinity, it will leads to bioaccumulation। bioaccumulation science पढ़ोगे, आपकी क्लास 9th NCERT में लिखा हुआ है। it will leads to fertilizers burn। what is fertilizers burn? Suppose you have given you have sprayed the or you have thrown the fertilizer in the field, and वहां पे कोई assured irrigation facilities नहीं है, there is no tubewell, there is no canal irrigation, and you are totally relied on monsoon। suppose the rain is delayed for 10 days, what it will done? पूरा आपका जो क्रॉप है ना वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। that fertilizer release heat, lot of heats, ठीक है, and it needs water also for the dissolution। तो पानी नहीं है तो fertilizers burn हो जाएगा। next is cancer, next is run of water। if बारिश बहुत ज्यादा होती है in and there is a nearby pond, और वहां से pond से the water supply is directly given to the villages, okay, this is the farmland, यहाँ पे fertilizers you have sprayed, and there is so much rain and that particular area is inundated in the water, that water will go into the pond, और pond के अंदर वो सभी carcinogenic substance है, उससे eutrophication होगा। और आपको पता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया के अंदर कैसे काम करते हैं? कुछ नहीं होता, वो सिर्फ क्लोरीन डालते हैं, है ना, तो वो डायरेक्टली आपके घर में आ जाएगा। उसके बाद इम्प्रॉपर रेशो, nobody is using fertilizers in a scientific ratio, but government of India had tried, कोशिश करी है उन्हें, सॉइल हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम सुना है आपने? सॉइल हेल्थ कार्ड, टू एनालाइज द सॉइल क्वालिटी, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, विच काइंड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड, is it a deficiency of phosphorus, is it a deficiency of potassium, or is it a deficiency of urea, ठीक है। बिफोर एनालाइजिंग फार्मर्स व्हाट दे डू इज, जो मन में आया मतलब फेंक दिया, ठीक है। सो इम्प्रॉपर रेशो इज यूज्ड 7:3:1, 7:3:1 is NPK। so 7 ratio is of nitrogen, that is यूरिया का सबसे ज्यादा हम रेशो रखते हैं। so ideal ratio should be 4:1, 4 ratio should be nitrogen, 2 ratio should be phosphorus, and 1 ratio of potassium। next is Central Pollution Control Board, Central Pollution CPCB, they have given a red status for industries polluting effluents, CWG emission, solid waste। one important thing, I need to study this or watch any documentary with respect to the this solid waste management। it's a high probability next year a report can be asked on this particular topic, solid waste management plant, how do they work, solid waste management this management project or something। one important thing is, suppose there is some leather industry, there is a steel industry, there is some medical or medicine manufacturing industry somewhere near the water source, suppose there is a river, these are the industry, leather, these are the industry of this I think steel ले लो, heavy metal जहां से निकलते हैं, और यहाँ पे ले लो this is a, यहाँ से medicine बनती है। all I think all of the medicine manufacturing company you will find across even in Uttarakhand और in हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिसिन बनती है। अच्छा अब देखो, this
these companies or these industries need to have a effluent treatment plant, ETP बोलते हैं इसको, they need to have. आप में से एक हरिद्वार के अंदर डीएम है, क्या नाम उनका, रावत है ना, दीपक रावत, यस सर, दीपक रावत, दीपक रावत है, he is a very यूट्यूबर। हाँ, तो यूट्यूबर, he was on some site inspection पे गया वो, और कहाँ पे, कबाड़ी की दुकान पता है आपको, जहां पे रिसाइकलिंग प्लांट था, देयर वाज सम रिसाइकलिंग प्लांट। रिसाइकलिंग प्लांट से सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीजें निकलती हैं, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक चीजें वहीं से निकलेंगी सबसे ज्यादा। वहां पे आपका गाड़ी भी जाएगी, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होगा, मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी देयर। अच्छा, वहां से कुछ लिक्विड वेस्ट भी निकलेगा, वेयर यू विल थ्रो दिस लिक्विड वेस्ट, what you will do is either रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं। either they can throw this liquid into the river, या फिर borewell, they can bore, they can dig the underground, पूरा उसको मतलब बोर करके they will release this in under water table। ठीक है, ये हो रहा है, these things are happening, हमें पता नहीं है। जब आप ये बिजनेस करते हो ना, जब आपके पास when you see these challenges, तो people used to take shortcuts। क्यों shortcuts? Because उनका बिजनेस इतना नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि they can procure this ETP plant, effluent treatment plant, because it's a costly exercise। How many of you this seen a recent news? एक न्यूज थी, परसों की न्यूज, I will share after the class, that most of the thermal power plants, they were given an advisory by the Power Ministry of India that they need to install a sulfur treatment something device, sulfur treatment device, और सल्फर था या फिर कुछ और था, एक था सल्फर ट्रीटमेंट डिवाइस। आपको अगर आपको कोल से आपको बिजली बनानी है, you need to have this particular device installed in the चिमनी में इंस्टॉल करना था। But after the COVID, you have seen, I think most of the discoms company है, फिर power generation company है, they are under stress। ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो इंस्टॉल करने में they were reluctant, and government has also said that कि आपको we are giving a 2-year window, 2 साल का और समय देते हैं, अगर आपको ये इंस्टॉल कराना है नहीं कराना, 2 साल तक हम we are giving more window। So this is the situation, ये सिचुएशन है। अगर गवर्नमेंट ही एक टाइम पे ये बोल रही है कि आपके पास पैसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 2 साल का रिलैक्सेशन दे देते हैं, बट देयर आर इंडस्ट्रीज जो ये सभी चीजें फॉलो नहीं करनी है। दीपक रावत की वीडियो देखना, ही वाज ऑन सरप्राइज विजिट of one particular recycling this recycling plant, here he analyzed ETP was not there, effluent treatment plant तो कुछ है ही नहीं, it's a separate unit within the recycling system। एक ETP होता है, उसके अंदर there are different rods होती हैं, कोई कैडमियम रोड होती है, कोई आपकी फॉस्फोरस की होती है, जो पॉइजनस गैस होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो पर्टिकुलर रोड है ना वो कंज्यूम हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, यू नीड टू इंस्टॉल अ डिफरेंट रोड। ठीक है, तो इतना इसके लिए पैसा चाहिए। नेक्स्ट इज वेयर वर वी, हाँ अच्छा हम तो नीचे आ गए। नाउ द लिमिट फोकस ऑन सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप मुझे बताइए, इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटीज, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव कवर्ड योर साइंस, अभी तक साइंस कर ली है, आई थिंक इन 8th क्लास। फर्टिलाइजर्स इज अ चैप्टर, एक फर्टिलाइजर्स आपका चैप्टर आएगा, फर्टिलाइजर्स के अंदर देयर इज अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ बताइए इसमें मैक्रो और माइक्रो कौन कौन सा है? मैक्रो के अंदर तो आपका आ गया आई थिंक एनपीके ही होगा ना, या माइक्रो के अंदर है? आई एम कंफ्यूज्ड। मैक्रो के अंदर है शायद, मैक्रो के अंदर है, ठीक है। सो एक बार इसको ना आप पढ़ेंगे, शायद मुझे ये लग रहा है कि इट मे बी इन माइक्रो, ठीक है, माइक्रो में हो सकता है, बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे आयरन का भी एक रेशो होती है, यहाँ पे आपकी उसकी इट मे बी अ मैग्नीशियम, एक होता है मैग्नीशियम MAGNISUM, एक होता है MAGNESUM, एक ही होता है मैग्नीशियम। सो इट लाइज इन दिस मैक्रो और माइक्रो, ये भी होती है। तो ओनली दिस फार्मर्स आर फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो को तो कोई देखता ही नहीं, माइक्रो हो गए, अच्छा इसलिए ठीक है। तो माइक्रो हमारे एनपीके ही हो गए, माइक्रो NPK।
Yes, somebody I think raised a hand. हाँ जी सर, ये माइक्रो में आते हैं, मैक्रो में ये अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इस टाइप के हाँ, आते तो इन पे फोकस है नहीं। अगर इन पे फोकस नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट बेस आपको आपका जो, देखिए फूड सिक्योरिटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी डज नॉट मीन ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड सिक्योरिटी के अंदर देयर इज अ वन इम्पोर्टेंट कैटेगरी, दैट इज nutrient security. If the micronutrient is missing, the protein and carbohydrate and these things are missing in the food, तो आपकी न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं उसके अंदर, वट एवर यू आर ईटिंग इज रबिश, कुछ उसके अंदर है ही नहीं न्यूट्रिएंट क्वालिटी। सो फार्मर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। ये भी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। न्यूट्रिएंट, आई थिंक दिस प्राइम मिनिस्टर 7 days before he talked about the nutrient security, ठीक है, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने पूरा बात की थी ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर स्पीच। तो ये भी आपको देखना है। न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी को आवर प्राइम मिनिस्टर हैज जॉइंड विद द विमेन, विमेन के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। व्हाई विमेन? बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द विमेन दे आर एनेमिक, अराउंड 40%, मोर देन 40 or 50 or 60% में भी दे आर एनेमिक। आयरन नहीं है उनके साथ, और आयरन नहीं है तो आपको पता है एनीमिक होगा, एनीमिक नहीं है तो किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, बट इट विल लीड टू कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज होगी, देयर विल बी वीकनेस, वीक इम्यून सिस्टम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद देयर, एंड वीमेन नीड्स टू गिव बर्थ आल्सो, and during this birth or during this delivery there will be some complication. That's why we are facing high infant mortality rate or even mother maternal mortality rate. ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है। सो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग मिड डे मील स्कीम, और एक और स्कीम है दैट इज स्पेसिफिकली फोकस ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ वीमेन, वो भी हम देखेंगे। सो वीमेन को भी जब हम होलिस्टिकली पढ़ेंगे ना, सो दिस थिंग, तो ये भी चीजें आपको पढ़ना है कि एग्रीकल्चर से ही चीजें निकलती हैं। जब मिड डे मील स्कीम में जब खाना जाता है मिड डे मील स्कीम के अंदर, दैट फूड मे और मे नॉट बी न्यूट्रिशियस। देयर वाज वन कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी थी? There was a controversy, yes, I will take your question, Rajmani. There was a controversy in the Karnataka government about the induction of egg in the midday meal scheme. How many of you know midday meal scheme को लेके controversy थी? मैं बता देता हूँ, controversy ये थी कि egg बोल रहे थे egg will affect the religion. There were people के बोल रहे थे we will not send our children to the school if you give an egg. ठीक है, कुछ religious community थी particular, उन्होंने बोला उनको egg दोगे तो we will not send our children. But despite that the government of Karnataka did not bow down and they have introduced the eggs. उसके इतने अच्छे result हैं, you will see those people who are following the egg, जो वो egg use कर रहे थे ना, those children, अगर उनका weight measure किया उनको कंटिन्यूअसली दैट पर्टिकुलर एग वाज प्रोवाइडेड फॉर 4 months, 4 month तक, और मॉनिटरिंग हुई, पूरी मॉनिटरिंग हुई इन बच्चों पे। the children who was having the egg and the children who was having the normal I think meal, एग को रिप्लेस करके उन्होंने एक और अल्टरनेटिव दिया बनाना का। ठीक है, कुछ ने बनाना खाए, बट एग से क्या होता है, एग के अंदर देयर आर प्रोटीन, और प्रोटीन हेल्प्स इन डाइजेशन इन मैनी वेज, बहुत सारी चीजें होती हैं एग के अंदर। तो इट्स अ पॉजिटिव, बहुत सारा उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हमें दिखी। शायद ये रेप्लिकेट भी होगा नेशनल लेवल पे जब भी रेप्लिकेट हो सकता है, जो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी अलग है, गवर्नमेंट थिंक्स कि अभी तो जेएनयू के अंदर इतना वायलेंस हो गया था ड्यूरिंग रामनवमी, कनेक्ट करेंगे तो वहां पे तो बेचारे मेस के अंदर नॉनवेज नहीं बनने दिया उस दिन। ठीक है, तो ये नेशन वाइड तो एक शायद एक सपना ही रहेगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं सर, मिल्क, कर्ड, ये सब वगैरह। ये दे रहे हैं, वो मिल्क और कर्ड वो दे रहे हैं, बट उससे डेफिशिएंसी कम नहीं हो रही बच्चों। तो इसलिए सरकार, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा बोल्ड डिसीजन लिया तो ठीक रहा। ओके, अब देखिए इंपोर्ट डिपेंडेंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, भूल मत जाना, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात हुई थी, इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर क्रूशियल इनपुट्स। ये देखिए, ये I think this particular incident happened more than 2 times, दो बार से ज्यादा हो चुका है। बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर तब भी हुआ था, फर्टिलाइजर्स की जो शॉर्टेजेस थी,
एंड आफ्टर द यूक्रेन और रशिया वॉर, उसके बाद भी ये सिचुएशन अराइज हुई। क्या सिचुएशन अराइज हुई कि फॉस्फोरस और पोटाश, और एक था MBT ऐसे करके कुछ फर्टिलाइजर्स का नाम था। ये फर्टिलाइजर्स दैट इज 100% इंपोर्टेड 100% इंपोर्टेड है। इंडिया के अंदर इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है इस फर्टिलाइजर का। तो इतना ही जब टोटली डिपेंड हम आउटसाइड पे कर रहे हैं और उसकी मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके प्राइसेस पीक हो गए। गवर्नमेंट मतलब देश के अंदर उसकी शॉर्टेजेस हो गई, द पीपल डिलेड द सोइंग सीजन, बहुत सारी चीजें हो गई, देयर वाज सम इफेक्ट, ये देखना पड़ेगा आपको। सो वी आर टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं हम, और चीजों का हमें मतलब सुधारना होगा। अच्छा, आप देखते हैं यूरिया कैनलाइजेशन। यूरिया कैनलाइजेशन का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। नो अदर प्राइवेट इंडस्ट्री कैन इंपोर्ट यूरिया, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इंपोर्ट कर सकती है यूरिया को। नाउ द चैलेंज इज 70% फर्टिलाइजर सब्सिडी, ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा, इससे क्या होता है फिर, आप मुझे बताइए इससे होगा क्या। आज ही मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्या भेजा है, एक कटिंग भेजी है कि दिस हाई ग्रेड फर्टिलाइजर्स आर डाइवर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। ग्रुप पे डाला मैंने, सबने पढ़ा। ये उसके आफ्टर इफेक्ट है। कोई भी पॉलिसी होती है उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट आते हैं। मैंने अभी शेयर किया आपको कि फर्टिलाइजर, हाई ग्रेड फर्टिलाइजर्स इज डाइवर्टेड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। उससे जैसे जैसे ये इसके आफ्टर इफेक्ट है इस पॉलिसी के, यूरिया कैनलाइजेशन के। ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएटेड, स्मॉल फार्मर्स को मतलब एक्सेस नहीं मिलता, आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाया जाता है। स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू द फर्टिलाइजर्स, देयर इज अ डाइवर्शन टू द इंडस्ट्रीज, ये आज की न्यूज है। स्मगल टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक बीजीडी क्या है, बांग्लादेश, बीजीडी, ठीक है, इसके बारे में मुझे पता लग गया था, शेयर नेबरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट इज यूरिया यूसेज हाई। ये हाई, ये क्या है, यूसेज, यूरिया की यूसेज हाई है। रेशो देखी थी हमने, 7th पार्ट यूरिया का रहता है, बाकी 3 और 1 ये। आइडियल क्या है, 4:1। 60 to 70% ऑफ यूरिया गेट वेस्टेड। कैसे वेस्ट होता है, हाउ इट इज वेस्टेड, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एक्सेसिव यूज, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर एक्सेप्ट यूरिया, फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट यूरिया, यहाँ पे यूरिया नहीं रहेगा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज के अंदर। सरकार क्या कह रही है, यूरिया पे रिलायबिलिटी मत बढ़ाइए, एक जमीन को उपजाऊ होने के लिए एनपीके इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एनपीके इज रिक्वायर्ड। पोटेशियम भी चाहिए भाई, और ये फॉस्फोरस भी चाहिए, ठीक है। सो पोटेशियम एंड फॉस्फेटिक। Now government is pushing that during this or under this nutrient based subsidies to deregulate subsidy on non urea fertilizers। अब नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स पे हम डीरेगुलेट करेंगे सब्सिडीज को, पोटेशियम एंड फॉस्फेटिक्स, ठीक है। यूरिया पे तो सब्सिडी है नो डाउट, लेकिन इसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पोटेशियम और फॉस्फेटिक्स पे एनबीएस के अंडर ये लेके आया जा रहा है। उसके बाद ये वाली तो आपको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, परंपरागत कृषि योजना। देयर इज अ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वन पर्टिकुलर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज, when did this zero budget natural farming as a concept introduced in the budget, in which budget, zero budget natural farming under which budget it was introduced, बजट का बताइए ना। 2018, 19, 20 नहीं, 20 में तो नहीं गया, मुझे मेरे ख्याल से शांतनु ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सर 2019 शायद। 19 लिखा है, मतलब सर्च किया आपने? नो सर, मैं ऐसे बोला क्योंकि मैं एक बार पढ़ा था। हाँ पढ़ा, तो थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं ना। हाँ, दिसंबर 6, 2019, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, और पूछा भी गया एक बार, यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। सो लुक फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का फोकस क्या है, ठीक है, कहाँ पे यूपीएससी पूछता है। स्क्रीन शेयर बंद होगी क्या? अच्छा हाँ, इसके बारे में सर मोदी जी ने भी बहुत बातें की हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, जीरो बजट नेचुरल उनके फार्मिंग जो पे। स्पीचेस होती हैं काफी सुनी है मैंने, बहुत बात करते हैं इसके बारे में।
जानबूझ के। अब 2.5 लाख करोड़ सब्सिडी देनी पड़ेगी तो सरकार तो चाहेगी ना कि कैसे ना कैसे 2.5 लाख करोड़ हम बचा पाए, उसको किस चीज पे यूज करें, फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, स्कूल बनाए। और 2.5 लाख करोड़ में आपको पता है कितने स्कूल और कितनी हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई हाथी के दांत दिखाने की और खाने की कुछ और होते हैं, ठीक है। जब आप साइंटिस्ट को सुनेंगे, when you listen to the this specialist and researcher that India should need to switch on the organic farming or not, तो उनका भी बोलता है the present context और present availability अगर हम देखें और present scenario देखें, India should not switch. It will take us some time, but before switching on a larger scale कि पूरा nation wide implement करने से पहले we need to study a one particular area, उस पे study करें, develop a case study, monitor that particular area for 2, 3, 5 years. उसके बाद we can replicate this particular successful project on a nationwide. Yes, Nitin? Sir, we have to learn from the mistake of Sri Lanka, what Yes. they have done. Excellent. Yes, Girish? So what is the nutrient based subsidy, such as potassium and phosphorus? Only potassium and phosphatic except urea. This is nutrient based subsidy is a scheme run by Government of India. It was started in 2010, but in the recent 2020 it got revived again. It is again revived. A decision was taken under Committee on Economic and Committee on Agriculture and Economic, ठीक है, a high powered committee, ठीक है. The committee took a decision that we need to continue with the nutrient based subsidy. In that only two particular this micro nutrient will be focused, potassium and phosphatic. They have excluded urea in that. The government wants that the farmers need to do or need to put more focus on the consumption of these two particular fertilizers, potassium and phosphatic. These are equally important because you have seen in your geography there is a chapter called soil. In North India, in South India, and in the Western India, different soil is there. Laterite soil is there. There is a black soil, and there is a alluvial soil. Different soils are there. In every soil, one important thing is missing. That is urea. Urea सब में कम है. But in alluvial soil, you will find potassium and phosphatic in high percentage. ठीक है, that is sufficient. But there are certain areas. Where this particular the presence of potassium and phosphatic is also less. ठीक है, वहां पे भी less है. तो government thinks that rather than solely focusing on the urea, we need to give some attention on the potassium and phosphatic also. ठीक है, तो इनकी consumption भी equally important है. ठीक है. Okay, Nitin, do you still have a question? And Girish, are you satisfied with the or you have understood? So in urea it contains the nitrogen, potassium, phosphorus, sir. Totally उसको यूरिया In बोलते नहीं. 7:3:1 ratio में. Okay, so it may be nitrogen. Yes, sir, nitrogen. So do we call Nitrogen. the urea as NPK? Yes, sir. Are you sure? Let me check. अगर ऐसा कुछ है तो it's a very relevant नहीं point. सर, हाँ, urea नहीं सर, ये डिफरेंट है शायद. composition. Let me check. Urea composition. It is CONH2 something. नहीं, Girish, it is not like that. Urea is not NPK. Chemical formula is CONH2. It is completely nitrogen. ठीक है, nitrogen and some part of this carbon. ठीक है, so do not intermix that. ठीक है. I think now you In booklet there is urea usage high 7:3:1 you wrote, sir. That's why I got doubts, sir. Okay, you are saying that there is a okay high usage of urea. Okay. Now it is resolved. Okay, sir. Okay. Now moving to this. Yesterday I also talked to you about a neem coated urea. Here it is.
मैंने आपको बोला था यू नीड टू स्टडी द नीम कोटेड यूरिया, आपने पढ़ा होगा। आई विल आल्सो शेयर अ न्यूज़ नीम कोटेड यूरिया की। आई विल डायरेक्टली आफ्टर द क्लास आई विल शेयर अ इम्पोर्टेंट कटिंग, ठीक है। लास्ट ईयर भी शेयर किया था मैंने, अभी भी कर दूंगा। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन टू सोल्व द दिस फर्टिलाइजर क्राइसिस? Two we have already talked, NBS. Another is the method we do the agriculture. We need to switch to the zero budget natural farming and organic farming. We need to reduce we need to reduce need of fertilizers. How we can reduce the fertilizers needs? Through organic farming, through biofertilizers. How many of you this particularly know Mycocharism, Rhizobacter, and Azotobacter? What are these? What are these? ये Rhizobacterium, sir. हाँ, The nitrogen fixer, sir. yes, nitrogen fixation bacteria. UPSC did ask this particular all three were given: Mycorrhiza, Rhizobacter, and Azotobacter. In civil service exam, all these bacteria was given during prelims. Or question was independent. Who all these bacteria I think remain independent existence? Do they have the independent existence? ऐसा कुछ करके पूछा था. I am not sure, but these three bacteria they specifically asked, so you should know. Okay, now the neem coated urea. Neem coated urea के साथ देखोगे, you have seen slower dissolution. That is the important technology they have used in the neem coated urea. The slower it get dissolved in the water, the longer it will remain in the soil, ठीक है, and the lesser they will flow with the water in terms of in case of there is a flood like situation, or there is flood के साथ तो सारा ही चला जाएगा, in case there is a rainfall, ठीक है. So the slower it will dissolve, the longer it will remain in the soil, and the longer the plant will be able to absorb it, and there will be a lesser need. कम नीड पड़ेगी आने वाले टाइम पे, कंजम्पशन कम हो जाएगा डायरेक्टली. सो नीम कोटेड यूरिया, एक तो ये. दूसरा, it will solve the problem of diversion, because neem coated urea is not suitable for the industry, ठीक है. Next is we can reduce down the size of the packet. This is a placebo effect only. I think farmers को पता नहीं लगेगा. Farmers क्या है? What does the farmer do? He only spray, or he only use, or he only throws the fertilizers through the number of I think the packets he needs to throw in this particular area. वो packet से calculate करता है कि how much packet is required for this particular area. If he need to sow I think 4 or 2 hectare, उसमें कितना आपका फार्मर मतलब वो जो फर्टिलाइजर्स के टोटल पैकेट रखते हैं. तो गवर्नमेंट सोच रही है कि ना 5 किलो का कट कर दे, वैसे भी एक्सिस में डालेगा, ठीक है. फार्मर को आदत है 5 कट्टे डालने की एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, या 2 कट्टे डालने की, जो भी है. सो विल रिड्यूस द साइज, ठीक है. फार्मर को पता नहीं लगेगा 5 किलो का कम हो गया. अच्छा, नाउ अनदर इज सोइल हेल्थ कार्ड. सोइल हेल्थ कार्ड टेल्स अबाउट द हेल्थ कंडीशन ऑफ द सोइल. सोइल हेल्थ कार्ड का कोई सैंपल लेके, सपोज द सैंपल ऑफ द सोइल इज टेकन एंड इट इज सेंट टू द दिस केंद्रास और द सेंटर, सोइल हेल्थ कार्ड सेंटर. यहाँ से आपकी रिपोर्ट आएगी, and the report will suggest what should be the ratio of the fertilizers. NPK का क्या रेशियो रखना चाहिए आपको अपने फील्ड के अंदर. तो साइंटिफिकली आपको यूज करना है. नेक्स्ट इज यूरिया रिफॉर्म के अंदर रिवाइव ओल्ड यूरिया प्लांट. कहाँ पे इंडिया के अंदर यूरिया प्लांट बंद कर दिए गए, बारूनी, गोरखपुर, सिंधरी, इनके बाद आप रिवाइव कर सकते हैं. तो यूरिया इज अ हाई आई थिंक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, वन ऑफ द हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. उस एरिया के आसपास यू विल सी के प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी. एनीबडी फ्रॉम केरला? देयर वाज अ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट इन केरला that was closed due to the protest. वहां पे जो लोकल पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया and that particular plant was closed. In that event आप देखेंगे उसके अंदर, उस इवेंट के अंदर the police took a strong action. Strong action क्या लिया?
वहीं पे मतलब दे शॉट मेनी ऑफ द प्रोटेस्टर्स। बस पे चढ़ चढ़ के उन्होंने क्या किया, फायरिंग की पुलिस ने, और वहीं पे वो बहुत बड़ा केस बन गया। केरला कॉपर प्लांट बैन, क्या नाम था उसका, दैट वाज स्टेरलाइट, स्टेरलाइट कॉपर प्लांट। इट्स अ केस स्टडी, यू शुड नो। ये केस स्टडीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाई इट गॉट बैंड, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उससे क्या हुआ है पता है? बैन होने से, एक तो बैन होने से कितने लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट गई, बहुत सारे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट गई, पीपल गोट अनएम्प्लॉयड। एक प्लांट के अंदर आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट देखे तो वहां पे इट वाज अराउंड मोर देन 2000 वर्कर्स वर देयर, 2000 से भी ज्यादा। इफ यू आर डायरेक्टली बैनिंग, सिर्फ बैन करने से, अब सुप्रीम कोर्ट की पता है 2 महीने पहले की वो है वर्डिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स केस पे ही, सुप्रीम कोर्ट था या फिर केरला का हाई कोर्ट होगा जो भी है, तो उनकी वर्डिक्ट थी कि वी नीड टू रिवाइव और रीस्टार्ट दिस स्टेरलाइट कॉपर प्लांट। इसको दोबारा से चालू करने की जरूरत है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इशू हो रहा है, बहुत सारे इशू है, और एक पर्टिकुलर प्लांट बनने के बाद वहां पे एंसिलरी इंडस्ट्रीज बन जाती हैं, वहां पे हाउसिंग फैसिलिटीज बन जाती हैं, वहां पे आउटसाइडर्स आते हैं, रेंट पे लेते हैं, अकोमोडेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो होल इकोसिस्टम गोट अफेक्टेड। दिल्ली के अंदर इन द राजेंद्र नगर ड्यूरिंग द कोविड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्लेड, अपने घर पे चले गए, एंड दैट होल इंडस्ट्री, होल द कोचिंग इंडस्ट्री, होल दिस आई थिंक रेसिडेंशियल वेलफेयर होल इंडस्ट्री, दिस ये जो रेंटिंग वाली इंडस्ट्री थी, ऑल गॉट अफेक्टेड। लाइब्रेरीज, मेनी ऑफ द लाइब्रेरीज गॉट शट डाउन। सो इट्स अ इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के अंदर अगर आप ऐसा कुछ होगा, सो पीपल विल बी अफेक्टेड। कोविड के बाद से सोचा था कि सरकार गिर जाएगी, बहुत सारा मतलब लॉन्गर टाइम के लिए लॉकडाउन रहा, बट अगेन सैफरन देखा काफी स्टेट्स के अंदर, वी हैव सीन सैफरन। ठीक है, तो अच्छा है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, यूरिया रिफॉर्म के अंदर, यस गिरीश। Sir, why reviving urea plants, sir, when it affects the health of the people? It is in national interest. Yes, you have a very good point. Somewhere when you see, when you read ethics, for ethics paper 4 for civil service exam, always you will see some important dilemmas like there is always a dilemma between environment plus and development. environment versus development. Here is the dilemma is, यहाँ पे dilemma क्या है? Health versus national security. National security है ना, एक तो food security, you can also write food security issue. अगर देश के अंदर फर्टिलाइजर्स नहीं होगा, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, रशिया से हमारी लड़ाई हो जाए, यूक्रेन से हो जाए, ठीक है ना, कहाँ से प्रोक्योर करेंगे आप? हमारे अंदर मतलब, इसीलिए दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे भी है ना, हाई डिपेंडेंसी विल शो। सो डायलेमा इज देयर। whenever there is a dilemma, we need to also take a decision somewhere. We need to compromise something. कहीं पे compromise करेंगे। now the time is we need to compromise the health of those people who are living in this particular areas. यहाँ पे या तो उनको rehabilitate करेंगे हम, we'll give compensation, एक चीज है तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, but for overall picture, for the national interest, we need to do this. Next is more private sector industries need to be invited in this production के लिए। इन्वेस्टमेंट इन ओमान, ओमान क्या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्या ओमान? हाँ, प्रोड्यूसर ही होगा, जब भी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करके वी कैन आई थिंक इंस्टॉल मैनी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज इन ओमान, हो सकता है। नाउ द डीकैनलाइजेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट। क्या थी डीकैनलाइजेशन? कि ओनली गवर्नमेंट कैन इंपोर्ट। अब डीकैनलाइजेशन खत्म कर सकते हैं। नाउ द थिंग कैन बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अच्छा, यूसीजी क्या है? Underground coal gasification. This particular thing can be asked in paper 1. ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। क्या है कोल का? आप गैस, कोल से गैस कैसे निकाल सकते हो आप? ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यूसीजी बेस्ड प्लांट लाइक इन टल्चर। वन इंपॉर्टेंट न्यूज इज
लद्दाख के अंदर क्या बना अभी रिसेंटली, जियोथर्मल पावर प्लांट है ना, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इज इन लद्दाख, ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है कल परसों। अगर आप बोलेंगे कि जियोथर्मल पावर प्लांट इट इज आल्सो इन पंजाब, पंजाब के अंदर कहाँ पे है वो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस, जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं है, बस देयर इज ओनली अ जियोथर्मल आई थिंक सम सिस्टम, उसके पीछे नाम है पानी, क्या नाम है, कौन सा पानी है पंजाब के अंदर, ओके लुक इनटू दैट जियोथर्मल, ठीक है। Now this neem coated urea we need to do gas pooling to provide gas at some uniform cost, bring urea with soil health card, within soil health card के अंदर हम यूरिया ला सकते हैं कि after analyzing soil health card, does soil required urea or not, only then we will spray or only then we will allow farmers to use it. Next is nano urea, we have talked about. Soil health card aim to rationalize, किस लिए है rationalize करने के लिए consumption का. Next is soil nutrition status, record through testing in labs का हमने बात कर लिया है. What are the challenges in fertilizers? First is land holding data. One important provision is still there. Only those farmers who have given the land record that this particular farmer is holding this much land, and in this year this farmer is going to cultivate this particular crop, then only the government will sanction the fertilizers जो उसको चाहिएगा, whatever it required. But यहाँ पे देखेंगे आप, there are people who take farm on lease, कोई लीज पे लेता है, and that too is under verbal lease, सिर्फ वर्बल लीज पे, ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इवन. तो वर्बल लीज के अंडर गवर्नमेंट क्या देगी उसको, देयर इज नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या करना पड़ता है, ही नीड्स टू गो टू द ब्लैक मार्केट. ब्लैक मार्केट में दैट फार्मर विल गो, वहां पे ब्लैक मार्केट के अंदर हाई प्राइसेस पे ही विल परचेज, ठीक है. इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज, हिज प्रोडक्ट विल बिकम इनकॉम्पिटिटिव and income will be less, income of the farmer will be less, and there will be distress, there will be again a cases of suicides, and all things will be there. Next is lack of farmer belief in recommendation, portal taking long in peak hours. हाँ, पोर्टल जब भी आप जो फर्टिलाइजर्स आपको चाहिए होता है, you need to register online, so it's a long process. Dealer recommending greater uses to maximize his sale, result in lab often not reproduce on farms. अच्छा, जो भी सोइल हेल्थ कार्ड की जो रिजल्ट होती है, दैट इज नॉट रिप्रोड्यूस ऑन फार्म्स. वे फॉरवर्ड डेटा कलेक्टेड कैन बी मेड अवेलेबल टू एनजीओज एंड एकेडमिशियंस. वो क्या करेंगे इसका, एनजीओज का, एनजीओ क्या करेंगे डेटा का, एनजीओ के पास अगर डेटा आ गया, दे कैन आल्सो रन सम आई थिंक कैंपेन, they can run some campaign, they can run some self or some awareness drives. What academician will do, academician will research, academician will find a way to sensitize also these farmers regarding the need. Acha, next is need to improve sampling and recommendation. Okay, now comes the pesticides, and here are the challenges. क्या क्या challenges है pesticides में? We know this these crops are vulnerable to pest. One important activity is recent past में, मुझे 6-7 महीने या फिर 1 साल पहले की न्यूज़ बताइए, ये इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रास होपर होता है, जो ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर, दैट पर्टिकुलर थिंग, इसको वो कौन सा टिड्डी वाला अटैक बोला था, ग्रास होपर अटैक था या क्या बोलते थे इसको, इसका दूसरा नेम क्या है, किसी को याद आ रहा है? Let me search. Locust attack. हाँ, locust attack, excellent. Locust attack ये हुआ था इंडिया के अंदर, मीडिया कवरेज थी बहुत ज्यादा, सबको पता है लोकस्ट अटैक इन इंडिया, ठीक है. और ये एक बार आ गया तो आई थिंक इस पे कोई पेस्टिसाइड भी काम करने वाला नहीं है, ठीक है. ये इतने नंबर्स में होता है, हजारों, सैकड़ों, लाखों नंबर्स में है. नो पेस्टिसाइड आई थिंक कैन नॉट स्टॉप इट.
अच्छा, तो crops are vulnerable to the pest attack. There is an improper applications of pesticides. गोभी खाइए कभी, मत खाना unless and until organic है, ठीक है। सबसे ज्यादा I think I have shared a documentary, सबसे लास्ट वाली जो थी, most of the fertilizers is sprayed on the cauliflower, सबसे ज्यादा उस पर छिड़का जाता है, ठीक है। And what we do is consumers are not even using sodium टू क्लीन दैट फर्टिलाइजर। सोडियम होता है और जो वेजिटेबल क्लीनिंग एक फ्लूइड आता है, एक पर्टिकुलर चीज आती है, वो भाई हम यूज नहीं करते, दैट विल लीड्स टू कैंसर्स। ओके, नाउ द इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, ओवर यूसेज इज देयर ऑफ पेस्टिसाइड्स, अनरेगुलेटेड लिस्ट अंडर इंसेक्टिसाइड्स इज देयर, के जो अनरेगुलेटेड है, द गवर्नमेंट हैड बैंड certain pesticides or insecticides, but farmers are reluctant to leave it, they are still using it. Now the low quality pesticides sold in market. One important thing is, how many of you see that this is a grain storage container in every house, or in most of the houses in villages you will find grain storage this container. Here we dump grains, और इसमें हम क्या डालते हैं, कपड़े में बंधी हुई दवाई होती है ना, नेपथलीन, उसको हम सुल्फास बोलते हैं इन लोकल लैंग्वेज, सुल्फास। वो नेपथलीन है शांतनु, सच में नेपथलीन तो वी यूज्ड टू पुट इन क्लोथ्स, नेपथलीन तो हम क्लोथ्स में डालते हैं, दैट इज नॉट नेपथलीन। हाँ सर, गलती होगी, है ना, उसका नेम बताइए, वो इट्स अ सुल्फास बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, sulfas poison, sulfas pill, yes, this is the name, sulfalazine qualities, nahi, pesticides. So sulfaz is suicide pill in Ghaziabad. So this particular pesticides is used for a wrong reasons also. सुसाइड्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये इस कलर की होती है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड फॉर्मूला, ठीक है, ये है। तो डिफरेंट इसके वर्जन है, बट यू शुड नो पेस्टिसाइड्स कैसे कैसे यूज होता है। ओके, कमिंग डायरेक्टली टू लीची वाला केस है। हाँ, कौन सा? बिहार में लीची वाला केस है, जो लीची के ऊपर छिड़का गया था, जो 19-20 जो मर गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार वाला केस, एक्सीलेंट। और बिहार जो लीची के ऊपर है, लीची के ऊपर फॉर द कलरेशन, उसको ज्यादा लाल दिखाने के चक्कर में ना, दे आल्सो डू सम स्प्रे ऑन इट, ये भी है। फूड स्प्रे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द और मोर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पेस्टिसाइड्स। मिसयूज हो गया, सबको पता है, चलो मिसयूज फॉर सुसाइड। वन इंपॉर्टेंट केस आई नीड यू टू स्टडी इज, इवन यू कैन वॉच द डॉक्यूमेंट्री, महाराष्ट्र बीटी कॉटन पेस्टिसाइड स्प्रे है ना, जो we have talked about the BT cotton that is genetically modified। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होने से पता है क्या, इट हैज बिकम अ पेस्ट रेजिस्टेंट। पहली बात तो इसमें पेस्ट लगता ही नहीं है, हो गया। लेकिन इन केस थोड़ा सा चांसेस होते हैं पेस्ट होने के। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब बिल्कुल ही नहीं कि 0% पॉसिबिलिटी है, बट द फार्मर्स आल्सो डू दैट। वो पेस्टिसाइड छिड़क रहे थे, तो बीटी कॉटन की हाइट है ना, इट गोज अप टू 8 फुट, 7 फुट, इतने बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 7 और 8 फुट द प्लांट हाइट। एंड व्हेनेवर द फार्मर्स डू द स्प्रे, तो ऐसे करके स्प्रे करते हैं, तो दिस थिंग फॉल्स ऑन देयर फेस आल्सो, और वो इनहेल करते हैं, वहीं पे वो बेहोश हो जाते हैं, दे डाइड ऑन द स्पॉट। ये हुआ है, आई विल शो। महाराष्ट्र बीटी कॉटन, सर वो एंडोसल्फान वाला था। हाँ, एंडोसल्फान, यस। न्यू बीटी कॉटन डिजास्टर इन इंडिया, ठीक है। 9 farmers have died after spraying Profex Super insecticides on their BT cotton plantation in Yavatamal district of Maharashtra. This is not a recent news. जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था ड्यूरिंग माई स्टडीज, इट वाज आई थिंक 2016 का केस है। द वसंतराव नायक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
तो ठीक है, ये उनके बाद वो है सीबीआई टू प्रोब, सीबीआई भी देखो इसके अंदर आई है, सीबीआई टू प्रोब पेस्टिसाइड पॉइजनिंग डेथ ऑफ 48 फार्मर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, सो लुक फॉर दिस इश्यूज, ये देखो ये इश्यूज है। सीबीआई कोई लगता है ऐसे अरे खैरे नथु खैरे केसेस के लिए सीबीआई विल कम? सो सीबीआई टू प्रोब पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग डेथ ऑफ 48 फार्मर्स इन महाराष्ट्र। ओके, now the initiative, what would be the initiative? Integrated pest management check. It is important. Integrated pest management check. All approaches, there will be a biological method will be implemented. There will be a cultural means will sensitize farmers. उसके बाद मैकेनिकल, और मैकेनिकल में आपको पता होगा कि मैकेनिकल के लिए भी वीड आउट, जो वीड्स होते हैं वहां पे, उसको हम क्या करते हैं, कर सकते हैं हम फिजिकली उसको निकाल सकते हैं, जो भी वहां पे खामा के वीड्स वहां पे जो ग्रो हो गए हैं। उसके बाद फोकस ऑन बायोपेस्टिसाइड्स, फोकस ऑन नीम फॉर्मुलेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल इज पास्ड। अच्छा, अब लैंड होल्डिंग पे आ जाते हैं। व्हाट इज लैंड होल्डिंग? नाउ द लैंड होल्डिंग बताइए मुझे, व्हाट इज द प्रेजेंट लैंड होल्डिंग? तो हमें पता है, मतलब कितनी बार बात कर लिया, एवरेज लैंड होल्डिंग 1.1 हेक्टेयर, दिस इज द प्रेजेंट। 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब मुझे बताइए, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द फीचर। कॉन्टेक्स्ट बोल दीजिए, फीचर बोल लीजिए। फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्या है? क्या है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे देश के अंदर। इतने 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है? लैंड छोटी है, छोटी उनके पास लैंड है, फ्रेगमेंटेड है। अच्छा, उससे क्या होगा? देयर विल बी अ पुअर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यू हैव सीन दिस प्रिंसिपल इन योर इकोनॉमिक्स व्हेनेवर यू आर रीडिंग इट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है योर बिजनेस इज स्केलेबल प्रोवाइडेड you increase your input. If you increase your input, your business can be scalable. It will increase, but there is some scarcity. You cannot increase your land, but you can increase the fertilizers. Fertilizers का आप increase कर सकते हो, ठीक है ना, but land is constrained। तो इसीलिए क्या करता है फार्मर जानबूझकर एप्लीकेशन किसकी करता है ज्यादा? फर्टिलाइजर्स, यूरिया, उससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, बट लैंड वो नहीं ले सकता, राइट? इसीलिए देयर इज अ पुअर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लार्जली सबसिस्टेंस फार्मिंग वी आर डूइंग, inclusive ownership right, limited success of land reforms. This contributes to this problem of land holding. Did we talk about land reforms? Yes or no? बात की थी ना लैंड रिफॉर्म्स पे? Yes, sir. There were three, yes, sir. yes, है ना चंदू? So there were 3 states, West Bengal, Kerala, and one important state was West Bengal, Kerala, and I think Tamil Nadu. इन्होंने सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया था लैंड रिफॉर्म्स, बाकी स्टेट्स में नहीं हो पाया। उसके बाद जमींदारी अबोलिशन नहीं हो पाया, टेनेंसी राइट्स नहीं इतने मतलब अच्छे, लैंड कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा, देयर इज नो लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर तो है लैंड सीलिंग, बट इट इज ऑन पेपर्स ओनली, ग्राउंड पे नहीं है, इट इज ओनली अ पेपर टाइगर। सो जॉइंट फार्मिंग, I think most of you know there are a concept of nuclear families. So nuclear families जब हो रही हैं तो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, जॉइंट फार्मिंग तो भूल जाइए आप। लैंड लीजिंग, FPO प्रमोशन, व्हाट इज FPO? फॉरेन पोर्टफोलियो, और दिस फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, digitize land records schemes, focus on small and marginal farmers. I think these are the solution. ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है इसकी। हम लैंड लीजिंग एक्ट लेके आ सकते हैं, हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं कि डिफरेंट स्मॉल फार्मर्स कैन कोलैबोरेट एंड दे कैन डू द फार्मिंग कलेक्टिवली। हो गया। उसके बाद डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? डिजिटाइज कर सकते हैं। उससे क्या होगा डिजिटाइज करने से? अब डिजिटाइज होगा तो सभी चीजों का मतलब पॉलिसी बनाने में सरकार को फायदा मिलेगा, हर एक चीजों को दे कैन एनालाइज के कौन सा लैंड एग्रीकल्चर है। स्वामीनाथन जी भी जो सर हैं वो बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, लैंड से रिलेटेड उन्होंने बोला था। So double helix. हाँ, व्हाट इज डबल हेलिक्स? Sir, including scientist and farmer. हाँ, साइंटिस्ट एंड फार्मर। एक और चीज उन्होंने बोली थी,
आई फॉरगॉट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी एक ही सेकंड पहले मेरे दिमाग से निकल गया, बट ठीक है, अगेन जब याद आएगा तो मैं बोल दूंगा। नाउ कम्स द मैकेनाइजेशन। अब मैकेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? मैकेनाइजेशन से एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आती है आपकी। वॉच इन डॉक्यूमेंट्री यूएसए के अंदर फार्मिंग कैसे होती है, यू वॉच ए डॉक्यूमेंट्री रशिया के अंदर हाउ डू द फार्मिंग। एक किसान सिर्फ, ओनली 1 or 2 people who only they can manage a very big land, बहुत ही लंबी मतलब लैंड देखेंगे आप, they are spraying the pesticides from the air only, fertilizers हवाई जहाज से उड़ाना उनको आता है, मतलब हवाई जहाज से they spraying it खेतों के अंदर। यहाँ तो आप इमेजिन कर लीजिए किसी को हवाई जहाज मिल गया, पता नहीं वो दिल्ली ही ले जाएगा शायद, रात को 2-3 पैक ज्यादा लग गए। तो ये देखिए वहां पे बहुत अलग अलग चीजें हैं। यूएसए में ऐसा नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट अच्छा है, दे नो कि किस हिसाब से उनको एरोप्लेन चलाना है, बहुत सारी चीजें। तो दैट शोज द मैकेनाइजेशन। यू हैव सीन अ बिग ट्रैक्टर्स, कंपेन, बहुत सारी चीजें हार्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपेन यूज होती हैं। अच्छा, अब देखते हैं स्टेटस क्या है। इंडिया के अंदर 40% एरिया पे हम व्हाट वी आर यूजिंग इज मशीन्स। And the seed spread through helicopter, excellent. Seed spread through helicopter, that is excellent. One more thing I want to connect with this seeds thrown through helicopter is forestation, afforestation. ठीक है, afforestation. This I think forest ministry, they have developed a particular kind of concept. क्या था? पेपर सीड, एक पाउच, what they have developed is a pouch. उस पाउच के अंदर there is a seed. If you throw that pouch on a land, आप randomly throw कर देंगे, a tree will come, tree grow हो जाएगा वहां पे पूरा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन। जिस एरिया के लिए जो ट्री बना है, जो स्पीसीज बनी है, वो ट्री अगर वहां पे आप बेसिकली यू थ्रो एंड यू लुक इट फॉर आई थिंक 1 or 2 days, ऐसा कुछ देख लो आप उसको थोड़ा बहुत, automatically that tree will grow. Same thing happen in Africa. अफ्रीका के अंदर यूनाइटेड नेशन दे ड्यू टू डिफोरेस्टेशन बहुत सारा अफ्रीका के अंदर हो गया था। उस डिफोरेस्टेशन और लैंड जो लैंड को वापस लाने के लिए, ठीक है, क्या किया उसने, फॉरेस्ट को वापस रिवाइव करने के लिए द यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन जो पूरी एजेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशन, दे कम टुगेदर एंड दे हैव गिवन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, प्लीज लुक इनटू दैट। अब इंडिया के अंदर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आई हैव सीन कि आई नो पीपल जो इसमें फॉरेस्ट सर्विस में है, सम आर माय फ्रेंड्स, उनको दिए जाते हैं ये पाउच दिए जाते हैं स्पेसिफिकली, एंड दे हैव शोन एंड दे हैव आई थिंक पुट इट ऑन देयर डिस्प्ले, पिक्चर पे भी लगाया उन्होंने, व्हाट्सएप पे शेयर किया, बहुत सारी चीजें। सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इससे हम ये कर सकते हैं। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है ना। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के साथ चैलेंजेस क्या है? लैंड होल्डिंग साइज इंडिया के अंदर आपको पता है फ्रेगमेंटेड है, तो मैकेनाइजेशन होने से रहा छोटे लैंड्स पे। लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल मशीन, वी विल टॉक अबाउट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है द ट्रैक्टर्स और मोस्ट ऑफ द थिंग्स वीमेंस के लिए दे आर नॉट कंपैटिबल। वो कंपैटिबल नहीं, वो अलग बात है कि वीमेंस उनको कैसे ना कैसे के दे ट्राई टू यूज इट। डीटीसी बसें हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर वीमेन आई थिंक ड्राइवर्स आर वेरी लेस, ठीक है ना, जब आप देखेंगे वीमेन ड्राइवर्स आर वेरी लेस। व्हाई? वन ऑफ द रीजन इज सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट, अनदर रीजन इज they lack gender neutral machines. So lack of smaller machines, high cost is involved to mechanize, limited awareness, and also a issue of stubble burning. Do you know why this stubble burning issue arises? Because in areas of Punjab and Haryana, people use most of machines only, ठीक है, to harvest rice को harvest करने के लिए they are using campaigns, उनको campaign ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो जब भी आप उसको यूज करते हैं, सो इतना एरिया उसके अंदर जो है, सपोज कीजिए दिस इज द प्लांट ऑफ द दिस इज द हाइट ऑफ द प्लांट, एंड व्हाट द कंपेन और मशीन विल डू इट विल कट फ्रॉम और फ्रॉम दिस एरिया ओनली, दिस इज द रेसिड्यू प्लांट, ये इतना बच जाता है। व्हाट फार्मर्स विल डू इट,
फार्मर्स के पास दे हैव द ओनली विंडो ऑफ 15 to 20 days, 15 to 20 days to do the next crop or to cultivate the next crop. They have the only window of 15 to 20 days. इतने short span में what they will do is, suppose कि जो उन्होंने कट कर ली, they have harvested their produce, 15 से 20 दिन में अगर वो इसमें इन्वॉल्व होंगे unnecessarily, they will look after the stubble burning, उसे हाथ से निकालेंगे बहुत सारी चीजें, they will waste around your 1 week, एक हफ्ता खो देंगे. So farmers what they do is they directly put the land on the fire, पूरा उस पर फायर लगा देते हैं. पहले क्या था, पहले लोग हाथ से निकालते थे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी दे डू हैव द सम लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन होती है कुछ, एवरी टाइम आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन होती है. सो दिस इज द लिमिटेशन, दे लीव द स्टबल, और वो स्टबल क्या होती है, एट द एंड फार्मर्स पुट इट ऑन फायर. Now the Krishi Unnati, this is another mechanism, submission agricultural mechanism is there, R&D, research and development, promoting collective ownership, this is important. Uberization, Ola cab is there, सबको पता है, you hired their service, आप उनकी कार यूज करते हैं and you leave it and you pay it, ठीक है, यही हो सकता है. Those farmers who cannot avail or who cannot purchase big machines, they can simply I think take it on a lease, वो उसको लीज पे ले सकते हैं, कुछ दिन के लिए रेंट पे ले सकते हैं, रेंटेड हो सकता है. सो अर्बन उबराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पंजाब MP launched pilot scheme on this particular thing only, उबराइजेशन. क्यों? स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा दे डेफिनेटली दे हैव डन इट, कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर मशीन्स बहुत सारी उसको प्रोक्योर की. उसके बाद क्या बोला, हैप्पी सीडर बोलते हैं उसको, हैप्पी सीडर्स, SEEDERS, ठीक है, हैप्पी सीडर्स, जो उसको निकालते हैं जमीन के अंदर से. सरकार ने अराउंड ये बहुत सारे खरीद के रखे हैं और लोगों को बोलते हैं कि प्लीज कॉल अस, वी विल कम एंड प्रोवाइड यू दिस सर्विस, हम खुद ब खुद आपके खेत से आके निकाल के ले जाएंगे. नेक्स्ट इज need small machine for small holdings. Next is feminization, this is important, we'll discuss this only, और उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे, we'll discuss again tomorrow. Feminization, Swaminathan has talked about the feminization of poverty. Feminization of poverty, what does it means? Only those areas which are not which are less remunerative, जहां से आपको पैसा कम मिलता है, लो पेइंग जॉब्स, वहां पे क्या हो रही है, फेमिन मतलब फीमेल्स की एंट्री हो रही है. isn't it against gender parity? जेंडर पैरिटी के अगेंस्ट है. isn't it against equality? ठीक है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है. only those areas which are low paying jobs, only areas. एग्रीकल्चर इज नॉट रेम्यूनरेटिव, कोई नहीं जाना चाहता एग्रीकल्चर में, ठीक है, एंड एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर. बट a different thing we have seen, anomaly we have seen. On the one side we have seen there is an increase in the literacy, of women. if you see 10 साल की टाइमलाइन देखोगे आप, there is an increase in the literacy of women, but on the other side we have seen there is an increase in the feminization of agriculture. So why this anomaly? फेमिनाइजेशन, अगर वो उनकी लिटरेसी इंक्रीज हो रही है, दे शुड बी इन द एग्रीकल्चर, इन द सर्विसेज सेक्टर. सर्विसेज सेक्टर में तो स्लो पेस से बढ़ रही हैं. बट वी हैव सीन female operation holdings, it has increased from 12 to 14% in last 5 years. What is the reason? Reason is out migration, because agriculture is nowadays is not remunerative, ज़्यादा पैसा नहीं generate हो रहा है. What they will do is, in the family, most of the men, they go and look out for the better work in the cities. They move to the cities. Cities में move करेंगे तो गाँव के अंदर कौन रह जाएगा? Only female who will look after the family, who will look after the agriculture. So it is not by the choice, it is by default. वो उनको मतलब due to migration उनको ये करना पड़ेगा. Women will take the lead. अच्छा, अब man moving to the non-agrarian jobs. Now the what would be the challenges? It's a non-gender friendly equipment is there, non-gender family and the friendly equipment. Land titles rather in name of women. आपको पता है सभी जो land के titles हैं, it is on
leader of the family, that is male in most of the times. अगर women के नाम पे उनके कागजात नहीं है तो women will not get credit facilities. women बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. उसके बाद देखोगे आप, one important thing is if women enrolled in agriculture, they are sexual harassment at the workplace also. Sexual harassment at workplace not only in the services sector. विशाखा गाइडलाइंस के बाद विशाखा जो इंस्टीट्यूट जो इंसिडेंट था 2012 के अंदर, there was a rape in New Delhi. Thereafter the Supreme Court has given a विशाखा गाइडलाइंस. ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस के अंडर क्या है, there is workplace safety at workplace. उसके लिए डिफरेंट सेफ्टीज बनाई गई हैं कि अगर कोई केस, कोई एलिगेशन लगती है, if women puts an allegation on her colleague, so there should be a committee, and the committee should be monitored or the chaired by one woman only. The chairperson should be a woman of that particular committee. ठीक है, 10 से 12 दिन के अंदर the committee needs to give some concrete report. ये सब कुछ देना है, but that is only in organized sector. What about the unorganized sector? Unorganized sector में सबसे ज्यादा ये issues होते हैं sexual harassment के. But the women, they enter into this agriculture sectors के अंदर जब enter करती हैं, they first of all they have the low bargaining power, they are illiterate. दूसरा, they are doing the low paid jobs. ठीक है, so weeding, thrashing, winnowing, or they are only I think most of the time they are molested by the men. So connect this social issue also. ठीक है, इसको भी कनेक्ट करेंगे. ओके, तो हमारा बैकवर्ड लिंकेज आज खत्म हो गया है. विल टेक अनदर क्लास टुमारो आल्सो, देयर वी विल डिस्कस अ फॉरवर्ड लिंकेज. फॉरवर्ड लिंकेज पे एक बार फटाफट से आप रीडिंग लेके आना. टुमारो विल कंप्लीट दिस. ठीक है, टुमारो यू विल आल्सो गेट योर टेस्ट आल्सो. ठीक है, वो भी हम कर देंगे. कोई क्वेश्चन और वाइंड अप करें? सर टुमारो इज अ टेस्ट सर. नहीं, I think tomorrow is a holiday. The day after tomorrow you need to write a test on agriculture. Okay. But we'll do class tomorrow. Okay, we'll do class on. Sir, pesticides challenges first point, sir. Pesticide challenges first point. First point would be usage low compared to global standards. We are using a low. We are using compared to. No, but somewhere it is used over usage. Dealer encourage. Here it is written over usage. So it's I think. How it will be a challenge, sir? Low compared to global standards. हाँ, ये देखो खुद ब खुद इसमें देखो. First of all, these 2 points are in contradiction. ये 2 points हैं contradiction में. एक जगह लिखा हुआ है over usage. Here it is written usage low compared to global standards. So ये तो justify नहीं कर रहा है. पहला चीज देखो, I just want to answer your point, this query. Your query is, if you use low pesticides, how it will become a challenge? Because we have seen in the established countries, in the modern countries, or in USA and in Europe, they are using high rate of pesticides also. Pesticide rate मतलब ज्यादा करने से, use ज्यादा करने से, there will be a less loss. ठीक है, crop yield will be more. इंडिया के अंदर people do not focus on the pesticides. ठीक है, एक बार खत्म हो गया तो हो गया, but they use mostly fertilizers. Pesticides वो इतना use नहीं करते हैं. So that's why I think they are writing usage low compared to global standards. But here it is written over usage, dealer encourage, right? So somewhere I think यहाँ पे disparity होगी. Disparity, like in some areas of the country there will be over usage, but in some areas there will be less usage. The people who are farming, who are employing only subsistence farming, ठीक है ना, for their own sustenance, वो भी तो हम इसमें count करेंगे. तो they are not using pests. Organic farming में there is no pests. ठीक है, तो सस्टेनेंस फार्मिंग हो गया, वहां पे पेस्टिसाइड्स आप यूज नहीं करते. सो इफ वी सी इट कलेक्टिवली, सो द एवरेज, if you see the average of whole India, that may be a low,
that may be a low compared to the global standards. That is, India may be using a 0.6 kg per hectare versus the global standard should be 10 kg per hectare if we see the average of it. ठीक है, इंडिया में अगर एवरेजली देखेंगे तो, राइट? समझ में आया गिरीश थोड़ा? Yeah, yes, sir. I can हाँ, one understand. important thing is pesticides is not free, by the way. Pesticides are not free, and most of the farmers, I think, you know, they are poor and marginal farmers. They do not have access to most of the things. So कुछ ना कुछ चीजें तो सोचेंगे, please leave it, at least leave the pesticides. Here we can save something, है ना? यहाँ से we can reduce down our input cost. So that's why I think they are reluctant to use this pesticides. Okay, here maybe. Okay, so any more question, anybody? चलो ठीक, वाइंड अप करते हैं. गुड नाइट एवरीवन. Good night, sir. Night, sir. Good night, sir. Thank Good you so night. much. Good night. Good night. Good night.